आपका टोटल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना होगा ओवर द लास्ट 26 years? There are couple of times where I made my portfolio zero. समझो कि अभी मैं कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहा हूँ 8-9 साल से मैंने कोई डिसरप्शन नहीं किया है, तो वो तो सब हाई डबल डिजिट है, से 15-16 to 20-23% CAGR. आपने फर्स्ट कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया था एंड आपने पैसा कमाया था खोया था? My dad used to work in State Bank of India. He had invested in a lot of these IPOs, and that time, Hero Honda, Reliance Industries. My dad passed away in late 80s when I was a kid. फर्स्ट स्टॉक में इन्वेस्ट किया, यू सेड कि आपने पैसा बनाया नहीं था, खोया था। Absolutely, 15,000 रुपया खोया था। अच्छा, ओके। यू लॉस्ट योर डैड व्हेन यू वर वेरी यंग। वो इंसिडेंट ने, वो एनेक्डोट ने आपका लाइक जर्नी कैसे चेंज किया? When that kind of scenario plays out, you have like massive insecurities. Now I'm nearly 50. I'm quite sure कहीं ना कहीं पे वो insecurities अभी भी आती होंगी. You start getting scared of your future कि भाई होगा क्या? 24-25 ईयर ओल्ड, आइडियल स्प्लिट क्या होना चाहिए? कितना परसेंट कौन से एसेट क्लास में जाना चाहिए? थोड़ा बहुत पैसा बैंक में रखो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए, बाकी पूरा इक्विटी में कर दो। बेसिकली यू आर अगेंस्ट लॉन्चिंग अ स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप जो है वो बड़ा यूनिवर्स है, उसमें हेट्रोजेनाइटी है, और जो स्मॉल कैप का इंडेक्स ही है इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। सो एनी स्पेसिफिक इंटरेक्शंस और मेमोरीज और लर्निंग्स फ्रॉम मिस्टर मोतीलाल ओसवाल, रामदेव अग्रवाल? Around the first day when I joined, both of them, Mr. Oswal and Mr. Agrawal, both of them gave me a book each. The book that Ramdev ji gave me, I still have that very same copy with all my markings. It's a book called Understanding Michael Porter. It is written by Joanne Magreta. And Mr. Oswal gave me a book which is called Ultimate Sales Machine, which is written by Chet Holmes. On an average कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहां पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। इफ आई जस्ट कैन टेक यू टू योर चाइल्डहुड डेज, लाइक यू सेड इन वन ऑफ द इंटरव्यूज दैट आप 1 BHK में रहते थे in a joint family. Yeah. Your father had applied in a lot of IPOs as well, and there were shares of Reliance as well, where you got to know कि हाँ मतलब patience से कितना wealth बन सकता है. Yeah. Is that how you got into investing? And आपने first कौन से stock में invest किया था and आपने पैसा कमाया था खोया था? So, first thing I'll tell you, Kushal, is that, pretty much a lot of people who have done anything you will hear this about them. Especially in my generation, you will hear this about them that I used to live in a 1 BHK in a joint family or something. उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए because 1970s में पूरा इंडिया वैसा ही था. So there is nothing special. What is my background is the background of most people. But yeah, I mean, what you said is a fact that, in the 80s, maybe late 70s and 80s, my dad used to work in State Bank of India. So he, like you mentioned, it turned out that, he had invested in a lot of these IPOs. And that time, Hero Honda, Siemens, Reliance Industries. And then there were some, which people don't know about, like say a cable company called Vindhya Telelinks, or say ZF Steering Gear. Like a lot of these, because I've read these names in share certificates. So yes, because I had seen, that kind of paper coming home through India Post, right? And I used to wonder, ये क्या आ रहा है यार बार-बार, what is coming, some annual report, some dividend check. So through my childhood, I've seen some of this correspondence and some paperwork, and then obviously lost track of it. But my dad passed away in late 80s when I was a kid, and then you're right, like you mentioned, somewhere in early 2000s we discovered, like there is a late 90s, early 2000s, it was discovered like a file full of paper, and then my mom kind of dematerialized, and some part of the portfolio my mom still has, right? So that was one familiarization with the market. Second is maybe just that I am a gujju. Third is that even when I used to be in engineering college, Harshad Mehta was front and center. It was like in my 11th, 12th and engineering college, it was every day. I mean, it was not Economic Times, it was midday and the front page of every newspaper. So obviously one got kind of intrigued that, ये हो क्या रहा है. Plus, even when I was in engineering college, a lot of my seniors, for some odd reason, they used to read Economic Times. I've said it before, I don't know why in an engineering hostel people were ordering Economic Times. I have no explanation for that, but I started reading.
एंड फिर कैसे लाइक कौन से फर्स्ट स्टॉक में आपको याद है कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट किया Oh था? yes. There used to be a company. Abhi, I have lost track of it. Somebody told me that it is merged with the series of mergers. But when I invested, it was a company called Mascot Systems. Okay, late 90s. Must have been 1999 when I was in my B school. It didn't do too well. I mean, I think in the 2000 tech bubble, whatever, after Ketan Parekh and all, it just went down the drain. But from what I understand is that it is now part of one of the listed companies through a series of mergers. I think that uh, I think it became part of which company was acquired by Mr. Fanish Murthy, right? I think one of the companies. It is still the merged entity, right? I've lost track of it, but at that time I definitely lost money. एंड इसमें फिर आपने जैसे फर्स्ट स्टॉक में इन्वेस्ट किया, यू सेड कि आपने पैसा बनाया नहीं था, खोया था। Absolutely, 15,000 रुपया खोया था. अच्छा, ओके। हम्म. तो आपने कब डिसाइड किया कि स्टॉक मार्केट में मतलब करियर बन सकता है, एंड वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि अभी आपको लगा कि हाँ, स्टॉक मार्केट इज द गेम फॉर मी? तो एक्चुअली ना कुशल, बहुत सारा पहले बहुत कंफ्यूजन था मेरे को, ये करना भी है कि नहीं करना है. और मेरे अर्ली करियर में तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन था. बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहीं बताया है कि भाई मैं तो आई एम एन इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर. तो ये टिपिकल वाला है कि भाई जैसे बोलते हैं ना कि इंडिया में लड़के पहले इंजीनियर बन जाते हैं फिर सोचते हैं अब करना क्या है. तो मैं तो इंजीनियर बन गया, राइट. फिर मैं एक फैक्ट्री में काम करता था. जैसे ये आप ये हर जगह केबल्स और वायर्स लगते हैं ना, तो वो पीवीसी से बनता है, पॉलीविनिल क्लोराइड से. तो उसकी कंपाउंडिंग मतलब पॉलीविनिल क्लोराइड के ये जो केबल्स और वायर्स बनते हैं, तो ये तो कॉपर होता है, फाइबर ऑप्टिक होता है. इसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग होती है. तो प्लास्टिक कोटिंग जो बनती है उसके प्लांट में मैं जॉब करता था 1.5-2 साल. उसके बाद मैंने MBA में पढ़ाई की, दैट टू इन फाइनेंस. तब क्या हो रहा था कि ऑल माय क्लासमेट्स, समझो किसी का इंजीनियरिंग विद MBA फाइनेंस का बैकग्राउंड है, ऐसे थे मेरे क्लासमेट्स. नाउ ऑल माय क्लासमेट्स वांटेड टू बी पोर्टफोलियो मैनेजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, CFO ऑफ अ कंपनी, consultant with one of the big consulting firms. And because I was not a great engineer, I used to work in a factory, not a good student. Then I got into B school. So I had this massive inferiority complex. तो एज अ रिजल्ट मुझे ऐसा समझ में आ गया भाई अपने आसपास में तो सब बहुत स्मार्ट लोग हैं यार, अपना तो इसमें नंबर लगने नहीं वाला है. सो फर्स्ट एन इंजीनियरिंग करियर विच आई डिडंट रियली एंजॉय. Then B school, when I had like inferiority complex because I realized yeah, everybody is much smarter than me. And everybody wanted to be a portfolio manager, and people were analyzing stocks and market was booming and all those kinds of things. So B school or engineering, not a great not a great time from perspective of clarity कि भाई आगे करना क्या है. And then when I realized that यार ये इतने सारे smart लोग fund manager बनने वाले, अपना तो नंबर लगेगा नहीं इसमें. So I went into sales. And then when I went into sales also, for the first couple of years I was very confused कि मेरे को करना क्या है, because I had this inferiority complex and I was an introvert. I still don't speak till I'm spoken to, by the way, right? So very difficult to be in sales. And then after a long period I realized that good salespeople actually don't need to talk too much. Good salespeople just need to be listeners. And the other thing which worked for me is that I was one of the rare salespeople who was technically qualified. There were not many salespeople who were engineers with MBA in finance, right? And in our industry, in the mutual fund or asset management or even private banking, any of these industries, sales is not what people think selling is. I mean, we don't ring doorbells and start selling people soap or shampoo. It's very knowledge oriented, very consultative, right? I mean, I need to understand what the economist or the portfolio manager is talking, and I need to relay it in as simple, जितना सरल भाषा में बोल सके उतना बोलना पड़ता है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को सिंप्लीफाई करके. सो बहुत सालों बाद क्लैरिटी आया कि भाई ये काम अपने मतलब कर सकते हैं. आई थिंक मुझे 2004 या 2005 के बाद क्लैरिटी आया होगा कि यार ये एसेट मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, ये अपने लिए सही है. मार्केट हमको समझ में आता है. सेल्स करने के लिए जो सेल्स लोग समझते हैं वो ये है नहीं एक्चुअली, राइट. आई इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद द बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड एक्चुअली. सो या मतलब ऐसा कोई पैटर्न नहीं था कि भाई ये करना है. फिर जैसे कई लोगों को आप पूछते हैं उनका बहुत परफेक्ट बैक स्टोरी होता है, ऐसा परफेक्ट बैक स्टोरी था नहीं एक्चुअली. सीरीज ऑफ कोइंसिडेंसेस, और फिर पता चला कि हाँ ये अपने लिए ठीक है, कर सकते हैं.
इफ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, सो आपने हम्म, जैसे बताया कि यू लॉस्ट योर डैड व्हेन यू वर वेरी यंग, जी, एंड लाइक आई आल्सो रेड समवेयर दैट ही डाइड इन अ कार एक्सीडेंट, जी, एंड आपके पास तो लाइक यू वर वेरी यंग दैट टाइम, तो आपका मतलब एज अ यंग पर्सन माइंडसेट कैसा था, एंड वो इंसिडेंट या वो एनेक्डोट ने आपका लाइक जर्नी कैसे चेंज किया, बिकॉज दैट मस्ट बी वेरी टफ. हाँ, सी क्या होता है एक्चुअली व्हेन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो प्लेज आउट, तो क्या होता है आपकी, यू हैव लाइक मैसिव इनसिक्योरिटीज, आई मीन, एंड आई डोंट थिंक वन कैन रन अवे फ्रॉम इट. नाउ आई एम नियरली 50. आई एम क्वाइट श्योर कहीं ना कहीं पे वो इनसिक्योरिटीज अभी भी फ्रंट में आती होंगी, राइट? सो बेसिकली व्हाट इट डज इज कि आपको आपका फ्यूचर जो है ना, यू स्टार्ट गेटिंग स्केर्ड ऑफ योर फ्यूचर कि भाई होगा क्या, करेंगे कैसे आगे, राइट? सो इनसिक्योरिटी एंड अनसर्टनिटी इट गेट्स हाइटेंड. सी वैसे तो हर यंग पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ हद तक इनसिक्योरिटी अनसर्टनिटी होती होगी, दैट्स माय गेस. कुछ लोगों का ऐसा होता है कि भाई उनको लगता है कि चलो अपना तो स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, अपने तो यही काम करना है. सो देर इज वेराइंग डिग्रीज ऑफ uncertainty, but when you are faced with such a instance in your life, then your level of uncertainty for few years goes very very high, and that is what actually, I don't know how all, I mean, I don't know where all it impacts the personality, but yeah, I think the words I can think of is insecurity and uncertainty. एंड बहुत यंग एज पे आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया, ऐसे आपको फील हुआ था? So actually, I was a bit lucky because I have an elder sister. So so obviously when my dad passed away, so that time he used to be in State Bank. So State Bank had this very unique program back then. I don't think it's there anymore. That if the earning member is no longer there, then whoever is the next dependent, they'll give them a compensatory job. But obviously my dad was वो तो काफी senior position पे थे, राइट? क्योंकि वो स्टेट बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर थे, फिर वो CAIB वगैरह बैंक्स की जो एग्जाम्स वगैरह पास करके वो तो काफ़ी सीनियर लेवल पे थे. अब जब उनका देहांत हुआ तो मेरी मदर को कंपनसेटरी जॉब मिला, बट मेरी मदर इक्वली क्वालिफाइड नहीं थी तब, तो उनको तो क्लर्क बन के ज्वाइन करना पड़ा. तो मेरी एल्डर सिस्टर थी. फिर ये हुआ कि जैसे ही बीकॉम उनका ख़त्म हुआ तो माई एल्डर सिस्टर शी स्टार्टेड वर्किंग. और मेरा जो पूरा काफ़ी हद तक इंजीनियरिंग एजुकेशन वगैरह वो सारा स्पॉन्सर्ड बाय माय सिस्टर. उन्होंने काफ़ी मेरे एजुकेशन में तब इन्वेस्ट किया. और फिर तो ठीक है, जब मैं बी स्कूल में पहुंच गया तब तो मैं भी मतलब अलग अलग इंटर्नशिप्स प्रोजेक्ट्स करके आई स्टार्टेड अर्निंग व्हेन आई वाज 21. मतलब आफ्टर इंजीनियरिंग तो मैं जॉब कर ही रहा था. फिर उसके बाद बी स्कूल में एक बार जाते हैं तो आप प्रोजेक्ट्स इंटर्नशिप करके कुछ कमा सकते हैं. सो उस तरीके से स्टार्ट किया. ऐसे पावरफुल एक या दो क्या लेसन्स हो गए जो आपने आपके डैड से सीखे एंड आप अभी भी इम्प्लीमेंट करते हो? सी एक्चुअली जो मुझे अब क्या है कि आई वाज 12-13 इयर्स ओल्ड, तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से प्रोफेशनल लाइफ यू के. वर दैट यंग, हाँ, हाँ, 12-13? हाँ, या आई मस्ट हैव बीन 13, या. सो इतना क्लैरिटी तो नहीं है कि भाई क्या-क्या लेसन्स, बट आई कैन जो मैं एनेक्डोट्स जो सुनता हूँ उससे मुझे समझ में आता है कि मे बी देयर इज़ जो एक्शन बायस बोलते हैं ना, कि भाई ज़्यादा लंबे समय तक कुछ चीज़ के बारे में चर्चा करना, ज़्यादा लंबे समय तक कुछ चीज़ के बारे में सोचना वर्सेस भाई स्टार्ट करो, करने लगो, एंड अलोंग द वे यू विल फाइंड. तो आई थिंक एक्शन बायस एक चीज़ जो मुझे ऐसा लग रहा है इनहेरिट किया गया है. या एंड जैसे आपने स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दिया, तो मेरे फादर तो बहुत अर्ली टाइम से इन्वेस्ट कर रहे थे. तो वो कहीं ना कहीं पे घर में वो माहौल तो बन जाता है. एंड द थर्ड वन जो है वो अलग है थोड़ा, इन द सेंस कि अब अगर आप 1950s 1960s और 1970s के हिंदी मूवीज के सॉन्ग्स बोलोगे ना तो मुझे सारे पता होंगे. तो आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू हिंदी म्यूजिक. सो वो कुछ चीजें हैं जो मतलब विरासत में, या इट कम्स इनटू यू ऑटोमेटिकली. एंड जैसे आपने बताया कि उन्होंने मतलब ऐसे रिलायंस, हीरो होंडा इसके या. शेयर्स एकदम ऐसे प्रिजर्व करके रखे थे, एंड हम्म. ही वाज आल्सो अ बिलीवर कि मतलब शेयर्स खरीद लो एंड लाइक बाय एंड फॉरगेट एंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो. तो वो रीजन हो सकता है कि आप में भी मतलब वो जो जैसे मोतीलाल ओसवाल में बाय राइट सिट टाइट वो वाला जो पॉलिसी वो वहां से ही इम्बाइब हुआ होगा. नहीं, सो एक्चुअली ऑनेस्टली क्या है कि सी टू बी ऑनेस्ट, मेरे फादर का तो अनफॉर्चुनेटली 1989 में देहांत हो गया, तो उनका तब
आई एम क्वाइट श्योर दैट तब इक्विटी में इन्वेस्ट करना, आईपीओज में पैसे लगाना, थोड़ा बहुत उसका चलन शुरू हो गया था, तो उनका वहीं से एक्सपोजर हुआ होगा मेरे ख्याल में, और वो खुद तो बाय एंड होल्ड कर नहीं पाए किसी कारण से, या उन्होंने खुद तो वो एक्सपीरियंस किया नहीं। और जो जब मैं मोतीलाल ओसवाल में जुड़ा, तब वो एक्चुअली 1920s में जेसी लिवरमोर ने लिखा था बाय राइट सिट टाइट, तो वो हम लोगों ने वहीं से पिकअप किया था कि भाई जो इन्वेस्टर्स हैं हमारे मार्केट में, अगर आप देखोगे कुशल, सारे जो फोकलोर है ना, अमूमन आपको कोई मैसेज आ जाएगा कि भाई 1980 में विप्रो खरीदते तो उसका क्या दाम हो जाता, इन्फोसिस या एचडीएफसी आईपीओ में खरीदते तो क्या होता, या राकेश जी ने टाइटन ले लिया तो उनका कितना रिटर्न बन गया। तो आमतौर पे ये फोकलोर है, लेकिन करता कोई नहीं है। तो वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए एक मैसेजिंग थी कि भाई सही स्टॉक्स या सही स्कीम्स को चुनो और पकड़े रहो उसको, क्योंकि बार बार छेड़छाड़ करने से तो कंपाउंडिंग आपकी डिसरप्ट हो जाती है। तो इसलिए वो एक मैसेजिंग था। अब यस, डेफिनेटली कन्विक्शन बढ़ता है, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में ये देखा था कि भाई अगर आप शेयर्स लेके 15-20 साल के लिए वो फाइल को अगर भूल जाते हो तो उसमें से कुछ वैल्यू निकलती है। वो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। डू यू रिमेम्बर कि उन्होंने, आपके बाबा ने कितने में इन्वेस्ट किया था, वो उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी बाद में? हाँ, सो सी क्या होता था तभी, इतना तो मैं आपको एक बेंचमार्क दे सकता हूँ, क्योंकि तब क्या होता था कि 100 रुपए का फेस वैल्यू होता था, और मेरे ख्याल में 10-10 शेयर, 1000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ही वॉज, जैसे मैंने बताया, ही वॉज वर्किंग इन अ बैंक। तो समझो कोई आईपीओ में अगर लगाना भी है तो 1000 रुपया, 500 रुपया, उस तरीके का मेरे ख्याल में। बट आई डेफिनेटली रिमेंबर के 100 रुपया पार वैल्यू का 10 शेयर टिपिकली इस तरीके का एप्लीकेशन होता था। तो समझो कि 15-20 शेयर्स होंगे या 20-25 शेयर्स होंगे, समझो 25-30 हजार रुपया लगा होगा, तो मतलब पूरा सिस्टर्स वेडिंग, माय वेडिंग, और फिर मेरी मदर ने मतलब क्या ही उसमें स्पेंड किया होगा, थोड़ा कुछ ऐड किया होगा, बट स्टिल आई थिंक द पोर्टफोलियो इज इन क्रोर्स। Oh, इवन इन अर्ली wow. 2000s इट वाज, इवन इन अर्ली 2000, मिड 2000s इट वाज इन क्रोर्स। मैंने बैठ के आईआरआर नहीं गिना है कभी, क्योंकि काफी सारे शेयर्स तो उसमें बिल्कुल रद्दी हो गए। बट जैसे हमने एग्जांपल्स लिए, नेस्ले, सीमेंस, रिलायंस, हीरो, ये ऑब्वियसली दे बिकेम बिग। So 25,000 का इन्वेस्टमेंट बैक इन हाँ, दोज in 30 डेज years it must have gone into crores. Got it. Fair. Definitely. And before we also get into your thesis at White Oak as well, आपके एंटायर करियर में आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड वर्स्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी रही होगी, एंड कितना रिटर्न परसेंटेज वाइज आपने कमाया या लूज See, किया worst तो होगा? आपने मेरे को स्टार्टिंग में ही पूछ लिया, which is a good thing about you. तो 15,000 रुपये पता नहीं कहाँ गया, जीरो ही हो गया। बट अगर आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट पूछेंगे तो क्या है कि सबके लिए ये शायद कंट्रोवर्शियल या सीख भी मिल सकती है, या एक्सपेक्टेड लाइंस पे आंसर नहीं भी हो शायद। लेकिन क्या है, देखिए, मैं म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल हूँ, मैं 26 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में हूँ, तो ये तो आप मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे ही, और ये सही भी है कि भाई आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, एसआईपी करिए, वो फैक्ट है। बट क्योंकि आप एक यंगस्टर है, आपके लिसनर्स है, उनके लिए मैं एक एक्सपीरियंस ये शेयर कर सकता हूँ कि एक्चुअली ना सबसे ज़्यादा रिटर्न अपने करियर से ही आता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और आप समझ सकते हैं कि भाई समझो मेरे जैसा कोई जैसे 26 साल काम किया है, तो हम लोग के करियर में ऐसा भी होता है कि कहीं आप काम करते हैं, आपको स्टॉक ऑप्शंस मिलते हैं, फिर उसकी वैल्यू बनती है, राइट? तो जो आप लंबे अरसे एक करियर में जितना रिटर्न निकाल सकते हो, एंड स्पेशली अगर आपका कॉम्पेंसेशन भी वेरिएबल लिंक हो जाए स्टॉक मार्केट से या ईसॉप से, उससे ज़्यादा रिटर्न नहीं बन सकता। तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए, चर्चा हमेशा ये होती है कि इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा रिटर्न बनता है। वो तो हमारा काम है, वो तो हम करते ही हैं लोगों के लिए, और मैं खुद भी एसआईपी करता हूँ। आप जानते हो कि सेबी का रूल है कि एज अ एएमसी सीईओ, पोस्ट टैक्स मेरी जितनी तनख्वाह आती है उसमें से 20% तो हमारे फंड में हमको इन्वेस्ट करना कंपलसरी है, राइट? और ये रूल नहीं भी था तभी भी मैं अपने, जहाँ पे अगर मैं मोतीलाल ओसवाल में जॉब करता था तो 100% मोतीलाल ओसवाल में इन्वेस्ट करता था। फिर जब मैंने चेंज किया आफ्टर वर्किंग देयर, तो 6-9 महीने के बाद मैंने पोर्टफोलियो धीमे धीमे शिफ्ट किया, पूरे पैसे व्हाइट ओक में शिफ्ट कर दिए, बिकॉज अलाइनमेंट है, स्किन इन द गेम है। फिर सेबी का रूल आया, तो देखिए, इन्वेस्टमेंट करके, एसआईपी करके तो हम 18-19% CAGR लंबे अरसे में बनाया है, बनाते हैं, इसके ऊपर तो पब्लिक डेटा है।
लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी एक चीज़ है कि अगर आपका एक करियर अच्छा बने और करियर में अगर आप इक्विटी लिंक कॉम्पेंसेशन अगर आपको मिले तो उससे बेटर, उससे ज़्यादा रिटर्न आपका कहीं नहीं बन सकता है। आमतौर पर डिस्कशन ऐसा होता है कि भाई सबकी लाइफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली, सबकी लाइफ बन जाएगी इन्वेस्टिंग से। तो इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरा लर्निंग ये है कि उसके एक लेवल ऊपर अगर जो खुद में इन्वेस्ट किया है और अगर जो करियर से आउटकम निकलता है, दैट कैन बी इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग अपने आप में ही नॉन लीनियर है, लेकिन करियर से ज़्यादा नॉन लीनियर या एक्सपोनेंशियल दूसरा कोई चीज़ नहीं है। एंड इसमें आपका टोटल जो भी पर्सनल लाइक इन्वेस्टिंग जर्नी होगा, जी। उसमें आपका टोटल कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना होगा ओवर द लास्ट 26 इयर्स? सो कुशल, क्या हुआ है कि देर आर कपल ऑफ टाइम्स वेर आई मेड माई पोर्टफोलियो जीरो के समझो। ये भी शायद नॉर्मल कन्वेंशनल विजडम नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई थोड़ा बहुत कमा के बचा के 2004 में मैंने घर लिया था, तो तब मैंने ऑब्वियसली काफ़ी पैसा दे दिया होगा। तो भाई समझो 98 99 से आप कुछ थोड़ा बहुत कमा रहे हो, फ्यू लाख रुपीज़ आपने बचाए, डाउन पेमेंट दिया, बैंक ने पैसा दिया, फिर आपने सेव किया, उसके बाद मैंने बांद्रा में घर लिया, तो फिर एक बार काफ़ी पैसा उसमें लग गया। सो इट हैज़ नॉट बीन मेरा, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, मेरे पास ऐसा कोई एसआईपी नहीं है जो 26 साल से चल रहा है। आई हैव डिसरप्टेड माई इन्वेस्टमेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज और डिफरेंट डिफरेंट गोल्स। बट इफ यू आस्क मी, जो भी मैंने चेक किया है कभी भी, समझो कि अभी मैं कंटिन्यूसली इन्वेस्ट कर रहा हूँ 8-9 साल से, मैंने कोई डिसरप्शन नहीं किया है, तो वो तो सब हाई डबल डिजिट है। लाइक इट विल बी इन द विसिनिटी, ऑल द इन्वेस्टमेंट विल बी इन द विसिनिटी ऑफ say 15-16 to 20 to 23% CAGR। एंड दिस इज ऑल म्यूचुअल फंड्स आई अज्यूम? आई इन्वेस्ट, मैं तो केवल कुशल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। द रीजन Wow. इज क्योंकि शेयर्स में तो कर ही नहीं सकते, अलाउड नहीं है। Right. और मतलब रेगुलेटरली अलाउड है कि भाई आप फलाना फलाना कंप्लायंस परमिशन रखिए, ये सब करके करिए, लेकिन मैं नहीं करता और हम लोग की कंपनी में हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हमारा ध्यान बढ़ जाएगा, हम सबको बोलते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करो, और हम खुद ही सोचते हैं कि शेयर्स लेके म्यूचुअल फंड से ज़्यादा रिटर्न बनने वाला है, तो वो तो लॉजिक ही नहीं बैठता है। सो आई इन्वेस्ट ओनली इन म्यूचुअल फंड। और जैसे वाइटोक का कोई एआईएफ है, पीएमएस है, सो जो भी चीज़ें वाइटोक मैनेज करती है वो तो सब वाइटोक में इन्वेस्ट करता हूँ। बट समझो कि वाइटोक है, वाइटोक का कोई कमर्शियल रियल एस्टेट फंड नहीं है, या वाइटोक का कोई प्राइवेट इक्विटी फंड नहीं है, तो ऑब्वियसली वो फिर बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड आपके हिसाब से कोई एक यंग इन्वेस्टर अगर ये वीडियो देख रहा है, तो ऑन एन एवरेज कितने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये एक सबसे बड़ा डाउट होता है। तो व्हाट्स द आइडियल नंबर अकॉर्डिंग टू यू? 3-4-5 ऑन द आउटर साइड। देखिए, अज्यूम करिए कि भाई कोई इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, 3-4 स्कीम से हो जाएगा। मतलब अगर आप देखोगे कि अभी बहुत सिंपल रखना है, तो आप 2-3 मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड लोगे तो पूरा कवर हो ही जाएगा। अगर कोई ये सोचता है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना है, मेरे को एक, मुझे ऐसा लगता है कि टैक्टिकली अभी एक जैसे आज के तारीख में डिजिटल, इट्स अ कॉन्ट्रा, एकदम बिल्कुल ही कॉन्ट्रा एडवाइस हो गया ना। आजकल बच्चा बच्चा बोल रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी का और डिजिटल का कुछ नहीं होने वाला है, सब लोग एआई की बात कर रहे हैं, यूएस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो अगर आपके माइंड में ऐसा ख्याल आया कि भाई अभी ये कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, चलो हमको एक टेक फंड खरीदना है, अगर कोई ऐसे एग्रेसिव है तो चलिए उसकी 2-4 स्कीम्स बढ़ जाएंगी। बट नॉर्मल जो है कि भाई एसआईपी कर रहे हैं थोड़े साल के लिए और भूल गए, आई थिंक मे बी थ्री फंड्स इज गुड इनफ। मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप होगा, कितने लोग हैं, 2-3 फंड इनफ है। एंड डेट इक्विटी हाइब्रिड, उसमें क्या लगता है, लाइक व्हाट प्रोपोर्शन शुड बी, हाउ मच इन व्हिच म्यूचुअल फंड? सो अगर आप ना कुशल किसी भी हमारे इंडस्ट्री में बात करेंगे तो दे विल से कि भाई अब हर एक इंडिविजुअल का फाइनेंशियल प्लान होना चाहिए। अब मेरे को पता है कि भाई ये आप सब जगह बैठ के सारे दर्शकों का फाइनेंशियल प्लान नहीं बना सकते, तो हम लोग जनरल बात कर रहे हैं। सो व्हाट आई डू कुशल इज दैट in my mind na, and then you can tell me if it is right or wrong, but in my mind there are two types of investors। एक होते हैं जिसको आप समझोगे, फॉर लैक ऑफ एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि मेरे जैसे होते हैं, कि भाई जिनका पूरा पैसा, जितना भी फाइनेंशियल एसेट है, पूरा इक्विटी में है, ठीक है। और मेरा एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये 100 रुपया अगर इक्विटी में है ना मेरा, तो उसका अगर 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो मेरे पेट का पानी नहीं हिलेगा, मेरा रात का कोई नींद बर्बाद नहीं होने वाला है। एंड थैंकफुली आई एम ब्लेस्ड दैट मैं उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर निर्भर भी नहीं हूँ अपने दाल रोटी के लिए, राइट। तो समझो मेरे जैसा कोई है, तो मैं उसको बोलूँगा 100% इक्विटी इन्वेस्टर, क्योंकि मार्केट के उतार चढ़ाव से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई आमदनी के लिए डिपेंडेंस नहीं है।
और लंबे अरसे के लिए पैसा डाले और इक्विटी का एक्सपीरियंस है, राइट? तो वो तो है 100% इक्विटी इन्वेस्टर. नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ इन्वेस्टर हु वॉट एवर दे मे से they are not a 100% equity investor. What is the characteristic? वे तेजी में इक्विटी इन्वेस्टर है, लेकिन मंदी में घबरा जाते हैं. गलत समय पे पैसा निकालने का मन करता है. जब मार्केट गिरता है तो सोचते हैं कि चलो अभी निकाल लेते हैं, और नीचे जाएगा फिर आएंगे. या बस 100 का 80 हुआ तो इमोशनल डिस्टर्बेंस, रात की नींद उड़ जाती है. तो ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों को 100% इक्विटी कतई नहीं करना चाहिए. वो तेजी के समय में बोले कुछ भी, मंदी में मूड खराब हो जाता है इनका. सो फिर देन उन लोगों को एसेट एलोकेशन करना पड़ेगा. और जब एसेट एलोकेशन की बात आती है, फिर आप प्रॉपरली साइंटिफिकली उसको करो. फिर आप देखोगे भाई फिक्स्ड इनकम कितना, इक्विटी कितना, गोल्ड कितना. जैसे कई लोग आजकल जब गोल्ड की तेजी आई तो सब लोग गोल्ड की बात करने लगे. अब मैं लोगों को बोलता हूँ कि भाई या तो मत लो, और अगर ले रहे हो तो भाई इट शुड बी पोर्टफोलियो का 15% तो होना चाहिए ना. क्योंकि अगर अब मैं एक एसेट एलोकेटेड पोर्टफोलियो बनाता हूँ कि भाई जिसमें समझो 40-50% इक्विटी है और बाकी डेट है. अब 40-50% इक्विटी का वोलेटिलिटी को बैलेंस करने के लिए आपको कम से कम 15% जितना गोल्ड होना चाहिए, तब उसका इक्विटी के वोलेटिलिटी के सामने गोल्ड का आपको कोई डैम्पनर या शॉक एब्जॉर्बर मिलेगा. कई लोग गोल्ड लेके खुश होते हैं, क्या देखा कितना अच्छा रिटर्न आया, हम गोल्ड लेके बैठे हैं. अरे भाई तुम्हारा 100 रुपए का पोर्टफोलियो में 2 रुपया गोल्ड है, वो भी तुमने लिया 6 महीने पहले क्योंकि गोल्ड का दाम ऊपर जा रहा था. अब वो 2 रुपए का हो गया 2.25 रुपया, तो तुम खुश हो रहे हो. अगर इक्विटी का मार्केट वाकई में गिरेगा ना, तो 2-5% गोल्ड से पोर्टफोलियो को कुछ नहीं होगा. इसलिए मैंने बोला कि भाई या तो आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अपना इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, रिस्क मिटिगेट करना चाहते हैं, आप डाउनसाइड नहीं झेल सकते हैं, डाउनसाइड अवॉइड करना चाहते हैं, तब आप एसेट एलोकेशन करो. और दूसरे हैं मेरे जैसे कि जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ऊंच नीच से, आपको पता है, आपको इतना भरोसा है कि लंबे अरसे में तो अपना ग्रोथ होगा. सो आइदर यू आर 100% इक्विटी और यू आर एसेट एलोकेटेड. दैट इज हाउ आई लुक एट इट. 100% डेट मैं किसी को एडवाइस करूंगा नहीं, क्योंकि इट्स ए लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन. उसके ऊपर तो काफी चर्चा हुई है, सो नो पॉइंट रिपीटिंग. या सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. तो अभी सेकंड वाला जो पॉइंट है, जो एसेट एलोकेटर वाला जो आपने बोला, एक तो हो गया कि 100% इक्विटी वाला. लेट्स अज्यूम कि सेकंड वाला है कि जो एक यंग रिटेल इन्वेस्टर है, सैलरीड इंडिविजुअल, मुंबई जैसे शहर में आया है जॉब करने, एसेट एलोकेशन उनका करना है अभी. तो 24-25 ईयर ओल्ड, सैलरीड, एंड अभी रेंट पे रह रहा है मुंबई जैसे शहर में, बस जॉब लगी है लेट्स से 8 लाख पर एनम, 10 लाख पर एनम की. तो इसके लिए आप क्या रेकमेंड करोगे कि आइडियल स्प्लिट क्या होना चाहिए, कितना % कौन से एसेट क्लास में जाना चाहिए, एंड कैसे इसको मतलब प्लान करना चाहिए? अगर कोई जो आपने डिस्क्राइब किया, कुछ और चीजें मैं इसमें अजम्पशंस डालता हूँ कि भाई करंटली इमीडिएटली मैरिज या इमीडिएटली हाउस परचेज या करंटली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. समझो 24-25 साल से लेकर के 28-29, समझो आने वाले 4-5 साल तक तो क्लियर है कि भाई अपना ही अपना है. सो देन मेरा एडवाइस पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि भाई थोड़ा बहुत पैसा बैंक में रखो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट के लिए, बाकी पूरा इक्विटी में कर दो. ओके, दैट वुड बी माय एडवाइस. क्योंकि अगर कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, तो उनको थोड़ा आपको काउंसिल करना पड़ेगा कि भाई आप SIP करो, राइट. 25-50 हज़ार लाख रुपया जो भी है, या कोई आपका क्रेडिट कार्ड है, जो भी आपको इमरजेंसी में वो तो काम आ जाएगा. लेकिन बाकी जितना भी बचा सकते हो वो पूरा इक्विटी में करना चाहिए. क्योंकि देखिए क्या है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, हर महीने समझो 20-25 हज़ार रुपये बचाने की आप ट्राई कर रहे हो, तो उसमें क्या है कि इन दैट कॉर्पस इट इज बेटर कि आप उसको थोड़ा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें. अगर आप लोअर 0 लेवल से अपने लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं और उसमें भी आप बोलेंगे रिस्क नहीं लेंगे, इसमें से आधा पैसा डेट में डाल दो, तो किसी को अगर वॉलेटिलिटी नहीं पसंद है तो कर सकते हैं, लेकिन सब ऑप्टिमल रहेगा ना. रिटर्न बनेगा नहीं उससे. सो आई वुड नॉर्मली 24 ईयर ओल्ड आई वुड से कि भाई अगर आपका कोई लायबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो पूरा इक्विटी में करना चाहिए. दैट वुड बी माय एडवाइस. बट देन इसमें व्हाट अबाउट लिटिल बिट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, अगर उसको थोड़ा गोल्ड में डालना है या लेट्स से दूसरे एसेट क्लास में डालना है, तो यू वुडंट रेकमेंड एट दिस पॉइंट कि गोल्ड वगैरह में डालो, फिक्स्ड इनकम में डालो, कुछ नहीं? गोल्ड इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग प्योरली फ्रॉम पर्सपेक्टिव दैट जब इक्विटी खराब होता है, आर्थिक व्यवस्था, जियोपॉलिटिक्स, व्हेन ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर गोइंग बैडली, then definitely gold plays as a shock absorber for equity. और आजकल क्या हो रहा है, जैसे कई जगह पे डेटा फ्लैश हो रहा है कि भाई
ओहो गोल्ड देखो इक्विटी की तरीके का रिटर्न दे रहा है, तो इसमें एक एंड पॉइंट बायस है, क्योंकि इक्विटी का मार्केट काफी समय से एक रेंज में है वर्सेस गोल्ड एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में डबल हो गया है। तो उसमें एक एंड पॉइंट बायस है ना, बिकॉज गोल्ड का पूरा रिटर्न आया पिछले 3 साल में, राइट, मोटा मोटी पिछले 2 साल में, और तब से लेके अब तक इक्विटी का मार्केट 22,000, 24,000, 25,000, 23,000 इसी रेंज में घूम रहा है। तो आई थिंक गोल्ड इज गुड फॉर रिड्यूसिंग वॉलेटिलिटी इन अ पोर्टफोलियो. I don't think for a young person, gold is going to give them high return. So, despite all of what I'm saying, अगर कोई बोलता है कि नहीं ये सब सही है, I am a young person starting now, long journey, but मेरे को equity, full equity नहीं करना है, volatility नहीं लेना है. So then, yeah, maybe they can do some multi-asset kind of combination, right? And typically we hold 30-35% equity, 15-20% in gold, and the rest in debt. तो वो low volatility के साथ फिक्स्ड इनकम से तो बेटर रिटर्न देता है, बट विद लो वॉलेटिलिटी. सो दोस काइंड ऑफ थिंग्स आर अ गुड ऑप्शन देन. गॉट इट. एंड रियल एस्टेट इज समथिंग जो उसको अभी तो टच ही नहीं करना चाहिए. हाँ, मतलब अगर आप जस्ट अपनी लाइफ की शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले अगर आप मतलब एक तो रियल एस्टेट में टिकट साइजेस, इलिक्विडिटी, प्लस इट्स अ वेरी बिग डिसीजन विच यू कैनॉट अफोर्ड टू गेट रॉन्ग. देखिए, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेंगे ना, आपको करना चाहिए था मल्टी कैप फंड में, आपने कर दिया बैंकिंग फंड में, चलो आपका कम रिटर्न आएगा, वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी, बट वेरी क्विकली एक बटन दबा के आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. सो अर्ली इन लाइफ अगर रियल एस्टेट परचेज में आपकी गलती हो गई, तो भाई उसको सुधारने में आपका फिर बहुत समय निकल जाएगा. तो आई थिंक रियल एस्टेट तो बहुत सोच के करना चाहिए. 24 साल की उम्र में तो नहीं करना चाहिए. जब आपको ऐसा लगे कि भाई अब अच्छी खासी आमदनी है, अगर आपको लगे, देखिए मैं क्या बोलता हूँ, कई लोग का ये डिबेट है कि घर तो लेना ही नहीं चाहिए, रेंट पे रहना चाहिए. नथिंग रॉन्ग विद इट. दैट्स अ प्रिंसिपल और अ फिलोसफी और अ बिलीफ. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट. तो उसमें भी मेरा क्लियर, मैं हमेशा, मेरे को भी पूछना, मतलब देख भाई तुम घर लेने वाले हो क्या? बोले हाँ, कभी तो कभी लेना है. सर कभी न कभी लेना है तो भाई जल्दी ले लो. कोई बोलता है कि नहीं नहीं, मेरा तो बिलीफ ही नहीं है इसमें, राइट, मैं कौन से शहर में रहूंगा मेरे को पता ही नहीं है. बोले अगर नहीं लेने वाला है तो देन यू बी ऑन रेंट, राइट. सो वन हैज टू बी वेरी क्लियर. समझो आप अगर 25 साल के हो और आप बोलते हो नहीं 30-32 तक तो लेने का ही है, ऐसे में थोड़ा मेहनत मुशक्कत करके स्ट्रेच करके जल्दी ले लो. लेकिन अगर आप बोलोगे ना कि नहीं मैं तो रेंट पे रहने वाला हूँ, तो देन डोंट बाय. आई मीन देयर इज नो कंपल्शन और देयर इज नो सच रूल ना कि करना चाहिए कुछ. But you bought your first house in 2004 when you were 28 years old. And from what I have researched, I don't know, I might be wrong, but just correct me if I'm wrong. तो आपने 80 लाख का घर खरीदा था, आपने लोन लिया था 75 lakhs का, आपका EMI था 60,000 एंड आपकी तब सैलरी थी 13 to 15 lakhs per annum. 15 lakhs का ये सही है डेटा, राइट? Yes, absolutely right. तो अभी इसमें एक बात बताओ, तो जब Bang on right, मतलब जहां तक मुझे याद है ये सब करेक्ट है. हाँ, तो अभी तो एक बात बताओ, तो अभी जब आपने ये डिसीजन लिया, द रीजन आई एम शेयरिंग ऑल दिस डेटा इज बिकॉज आई वांट टू आस्क यू कि आपने 28 में घर खरीद लिया, ये सब डेटा पॉइंट्स मैंने बताया, तो डू यू थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन फाइनेंशियली एंड इमोशनली? आई थिंक सी, देखिए अभी तो क्या है कि सुकुशल जब भी क्या होता है, कोई 28 साल का होता है और अभी आई एम 50, से 49.5 years. So by the time you get to my age ना, you realize few things. First thing you learn कि भाई कोई भी डिसीजन का जो क्वालिटी ऑफ द डिसीजन है ना, आउटकम से जज नहीं करना चाहिए. मीनिंग दैट नाउ अब आप मेरे को पूछोगे सही डिसीजन था क्या, बोलेगा हाँ ऑफ कोर्स आई कैन गिव यू द स्टैटिस्टिक्स, आई मेड लॉट ऑफ मनी, करेक्ट. तो नाउ इफ आई सिट बैक एंड से इट वाज ग्रेट डिसीजन, इवन एट दैट टाइम व्हाट वाज द रीजन? सी 2-3 थिंग्स आर देयर. अभी आई कैन गिव यू तब के क्या रीजंस थे मेरे को एक्चुअली पता नहीं. इट मस्ट हैव बीन इमोशनल ओनली, राइट, कि अपना घर बनाने का है एंड दोस काइंड्स ऑफ थिंग्स. प्लस थी नाउ समबडी वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेप्लिकेट. द रीजन बीइंग दैट तब के ना बहुत पॉलिसीज बहुत अलग थे. वरना आप सोचो कि 81 लाख रुपीज के घर में बैंक कैसे 75 lakhs देगा? अब तो वो रूल ही नहीं है. अब तो 80% ही दे सकता है बैंक. आई कैन टेल यू विल बी ज़ैप्ड टू नो दिस. इन द ईयर 2009 जब ये लेमन क्राइसिस के बाद घरों के दाम बहुत गिर गए, कोई बैंक्स कितना फाइनेंस देते थे? टेक अ वाइल्ड गेस. 105%. What? Yes. 5%? Yes. They used to be willing to. So you are only paying stamp duty and registration.
On the agreement value, the bank was willing to even fund for furniture and commercial furniture and appliances and any value add. See, आप घर लेंगे तो समझो आपने बेयर शेल लिया है, आपको उसमें टाइलिंग, फ्लोरिंग, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल्स, एयर कंडीशनिंग, ये सब तो फिक्स्ड एसेट्स आप लगाओगे ना घर में, तो बैंक यूज टू फाइनेंस इवन दैट. So for the longest point in time, banks were doing 90% और 100% finance. And 2009 के bottom में तो interest rate भी low था, तब के लिए 9% low interest rate था. And bank used to give 100%, and I know one bank which I am not naming, it went to 105%. Okay. Wow. So they would do house agreement plus accessories and white goods and appliances. They used to go to that level. Whatever is your fixed, you're going to put there. So इतना था. अब ये माहौल नहीं है. करेक्ट. सेकेंडली क्या होता है कि तब मैंने आई बॉट अ हाउस इन कपल ऑफ किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, परेल में, सिवरी में. अब वो दाम नहीं है, अब वो मुंबई नहीं है, अब ये लोअर परेल वो है नहीं. सो कॉन्टेक्सचुअल होता है, राइट. बट येस, तभी मैंने इमोशनली या कुछ सोच के थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स, थोड़ा बहुत इमोशन करके लिया होगा घर. इन हाइंडसाइट इट टर्न्ड आउट वेल. बट सब लोगों को वो रिस्क, और खास करके अभी 2025 में वो रिस्क लेना थोड़ा मुश्किल है. मतलब आई डोंट नो इफ आई हैव टू डू इट अगेन, हाउ आई वुड डू इट. आई माई सेल्फ डोंट नो द आंसर. If you would have been 28 today, आप घर खरीदते आज? मुश्किल होता पर्सनली, इफ यू आस्क मी. इसलिए मैंने बोला कि मुश्किल होता. मेरा बिलीफ अभी भी है कि भाई अगर किसी को घर लेना है ना तो जल्दी ले लो. Okay. क्यों मालूम है? क्योंकि अगर आप जल्दी लेने का लॉजिक क्या है? क्योंकि अल्टीमेटली इफ यू डू एवरीथिंग राइट एज यू गो अलोंग इन लाइफ, भाई जितना जल्दी, इट्स अ फोर्स सेविंग ना. इट पुट्स यू इनटू डिसिप्लिन. इट्स अ फोर्स सेविंग. सेकेंडली, एज यू गो फर्दर, क्या होता है कि योर अफोर्डेबिलिटी एंड योर अर्निंग पावर, इफ यू डू एवरीथिंग राइट, इट एक्चुअली गोज अप. तो अभी स्ट्रेच करके थोड़ा हैसियत के बाहर कुछ कर लोगे ना, आपको अभी जो बहुत मुश्किल लग रहा है ना, ट्रस्ट में 5 साल बाद उतना मुश्किल नहीं लगेगा. बिकॉज यू एज अ पर्सन, यू एज अ प्रोफेशनल, और आपकी अर्निंग पावर चेंज हो जाती है. तो जितना जल्दी करोगे ना वो आपके लिए. और एक जल्दी करने का रीजन और एक ये है कि भाई उस एसेट क्लास में एक बार पैर अपना घुसा दो. भाई जो ट्रेन मेरे को, देखो, अगर आपको एक ट्रेन पकड़ना ही है, आपको एग्जीक्यूटिव चेयर कार 1 सबसे आगे पकड़ना है, तो आप C10 में चढ़ के फिर अंदर से जा सकते हो. भाई वंस यू आर इन द ट्रेन, देन यू कैन चेंज योर प्लेस. इफ यू आर नॉट इवन इन द ट्रेन, देन हाउ यू आर गोइंग टू चेंज योर सीट? देयर इज नो क्वेश्चन, राइट. सो ये रीजन है जिसलिए मैं बोलता हूँ कि भाई करना है तो जल्दी करो. बट आई नो कि भाई ये मेरे को पता है 2025, 2006 नहीं है. तो हमको, अब जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यंगस्टर्स को प्रीच करने में बिलीव नहीं करता हूँ. बट ये मैं जरूर मानता हूँ कि भाई अगर करना ही है तो जल्दी करो. या आपका पर्सनल जो पोर्टफोलियो है, दैट इज स्प्लिट इनटू 50-50, 50% इक्विटीज, 50% रियल एस्टेट. ये रियल एस्टेट में भी 80% इज कमर्शियल रियल एस्टेट एंड 20% इज रेसिडेंशियल रियल एस्टेट. एब्सोल्युटली राइट. तो इसमें कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल रियल एस्टेट जो है, ऑन एन एवरेज क्या रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एंड ये लाइक 50-50 जो आपने किया है, तो लाइक आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास, लाइक व्हाट इज द थीसिस ऑफ इन्वेस्टिंग इन द. सो मैं एक्चुअली ना कुशल, अदर देन जो आपने 1-2 एग्जांपल पूछा, जैसे आपने मेरे को घर के बारे में पूछा एज अ यंगस्टर, तो वो तो रहने के लिए, मतलब आई यूज्ड टू लिव विद माय मॉम. फिर मेरा प्लान था कि भाई मैं उस घर में रहूंगा. फिर वो घर मैंने रेंट पे दे दिया, फिर कभी बेच दिया, फिर दूसरा घर लिया. तो अब तो फाइनल पोजीशन इज दैट मी एंड माय मॉम हैज अ हाउस, आई हैव अ हाउस. सो वो ठीक है. अब नाउ अब आप जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का, रियल एस्टेट का सीरियस इन्वेस्टमेंट तो मैंने 2021 में स्टार्ट किया एक्चुअली. एंड सॉरी, जस्ट टू क्लैरिफाई, ये जो 50-50 स्प्लिट जो मैं बोल रहा हूँ, दिस एक्सक्लूड्स द हाउसेस दैट जिस यू घर में रहते हैं वो तो नहीं गिन correct. सकते. Yeah. वो तो नहीं गिन सकते. 2021 आई स्टार्टेड मोर, एंड ऑफ 2020 से आप समझो, टू बी प्रिसाइज अगस्त 2020 एंड 2021, दैट इज व्हेन आई बिकेम अ सीरियस रियल एस्टेट इन्वेस्टर. उसके पहले, बिफोर 2020, रियल एस्टेट वाज ओनली माय मॉम्स हाउस एंड माय हाउस. आई नेवर, मेरा ऐसा कोई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का थीसिस नहीं था. बट क्यों मैंने स्टार्ट किया, मैं आपको बताता हूँ. क्योंकि 2-3 कारण है इसके. एक तो भाई 2020 और 2021 का आप समझो, एक तो मार्केट का माहौल. क्योंकि देखिए, आप बाय एंड ऑफ 2020 स्टॉक मार्केट अपने प्रीवियस हाइस को रिकवर कर चुका था. लेकिन बाय एंड ऑफ 2020 ना कुशल, रियल एस्टेट 10 साल से डोल्ड्रम्स में था. करेक्ट. क्योंकि अगर आप
पूरा 2010 से 2020 अगर आप देखोगे बैंकों के एनपीएस थे, तो बैंकें फाइनेंस नहीं कर रही थी इतना, पूरे इकोनॉमी में केपेक्स नहीं था। रियल एस्टेट के आप जैसे आज देख रहे हो प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट्स, चाहे वो गुड़गांव हो चाहे वो मुंबई हो, वैसा नहीं हो रहा था। कोई एक्सपेंशन, सो रेरा, जीएसटी, डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद कोविड, और उसके बैकग्राउंड में जो स्लोइंग इकोनॉमी, बैंक्स नॉट लेंडिंग फॉर रियल एस्टेट, काफ़ी सारे, उसके पहले आईएलएफएस डिफॉल्ट हुआ था, क्रेडिट क्राइसिस हुआ था, बहुत सारी चीज़ें 2010 से 2020 है ना, सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स, आप जानते हो, राइट? अगर आप स्टॉक मार्केट में निफ्टी या सेंसेक्स की कंपनियों का अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ देखेंगे, इकोनॉमी का ग्रोथ देखेंगे, हर जगह दिख रहा था। तो रियल एस्टेट का ये सब चीज़ों पे, और स्पेसिफिक रियल एस्टेट के जो कंडीशंस थे ना, बहुत खराब थे। सो 2020 में समवेयर आई केम अक्रॉस दिस लॉजिक कि भाई अगर मैं ये सोचूं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस इन्वेस्टमेंट में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, तो जिस इन्वेस्टमेंट में पिछले 10 साल में कोई कैपिटल ही नहीं डाल रहा है। देखिए क्या होता है, जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो न्यूमरेटर में तो भाई दाम कितना चेंज हुआ या कैश फ्लो या प्रॉफिट कितना चेंज हुआ, वो न्यूमरेटर होता है। डिनोमिनेटर में होता है कि कैपिटल कितना लगाया। तो 100 रुपए कैपिटल लगाया, राइट, और उस पर अगर 20 रुपए का न्यूमरेटर चेंज हुआ तो 20% रिटर्न, इसे हम बोलते हैं ना। सो द पॉइंट इज दैट 2010 से 2020 में डिनोमिनेटर जो है ना, जो कैपिटल, रियल एस्टेट में कैपिटल कुछ नया लग नहीं रहा था। नंबर ऑफ डेवलपर्स भी एक्चुअली कंसोलिडेट होके श्रिंक हो रहे थे, राइट। तो मुझे पता था कि भाई इसमें अगर कोई कैपिटल लगा ही नहीं रहा है, सब लोग इसके एंटी हैं। लाइक लोग बोलते हैं भाई कोई घर ही नहीं खरीदेगा, सब रेंट पे रहेंगे, राइट, रियल एस्टेट में तो कुछ बनता नहीं है, इस तरीके का माहौल था। सो इट वॉज अ ट्रू कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट। बाय एंड ऑफ 2020 एंड अर्ली 2021 इट वॉज अ ट्रू कॉन्ट्रा इन्वेस्टमेंट। और तब ब्याज दर बहुत नीचे थे। तो जैसे आपने कमर्शियल के बारे में पूछा, आप सिंपल लॉजिक लगाओ, यू पुट 3 रुपीज, द बैंक पुट 7 रुपीज, द रेंट विल पे द ईएमआई। तो बोरो उतना ही करोगे जो रेंट से ईएमआई निकल जाए ना। आई कैन नॉट पे द, आई डोंट वांट टू पे द, राइट। दूसरा चीज क्या होता है इसमें, हर साल 5% तो रेंट रीसेट होता है, राइट। अगर आपने 2020 या 2021 में लिया तो होपफुली बाद में कैपिटल भी आपका अप्रिशिएट होता है। इंटरेस्ट रेट पहले ऊपर गए अब नीचे आए। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो अगर आप यील्ड पैरिटी बेसिस देखते हैं तो प्रॉपर्टी का दाम और अप्रिशिएट होता है। और लास्टली, धीमे धीमे मैं चाहूँ तो मैं रीपे भी कर सकता हूँ ना। देखिए वैसे नॉर्मली अगर रेंट, अगर आपका ईएमआई भर रहा है तो आपकी इक्विटी बढ़ रही है, बिकॉज वो इंस्टॉलमेंट्स में प्रिंसिपल भी आपका रीपे हो रहा है, करेक्ट। और धीमे धीमे अगर मैं चाहूँ इन फ्यूचर सम पॉइंट इन टाइम अगर मैं उसको रीपे कर दूँ तो मेरे लिए रिटायरमेंट प्लान बन जाता है, बिकॉज इट विल गिव मी रेंटल इनकम। सो जितना लोग सोचते हैं उतना एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है नहीं एक्चुअली मेरा। कमर्शियल हैज बीन यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर फिक्स्ड इनकम। तो मैंने फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट को हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट बना दिया ना, क्योंकि इट इज पार्टली इक्विटी पार्टली रेंटल यील्ड एंड देयर इज अ इनबिल्ट अप्रिसिएशन। सो फिक्स्ड इनकम, सो शायद इक्विटी, मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उस पर जितना इक्विटी में रिटर्न आया उतना करीब करीब रियल एस्टेट में रिटर्न आया है पिछले 4 साल में। कमर्शियल या रेसिडेंशियल? सो रेजिडेंशियल व्हाट हैपेंस इज दैट के इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू बाय एट व्हाट प्राइस। सो जिस एरिया में हम बैठे हैं वहां पे अगर आपने 2020 में घर लिया है ना तो इट हैज डबल्ड। करेक्ट, या करेक्ट। सो दैट इज रिटर्न लाइक इक्विटी in last 4.5 years. Or and commercial also, because commercial property has appreciated by almost 50% in the last 4 years. Right. And then you calculate if it is leveraged, what will happen. And then you calculate that you are not even paying the cost of the leverage. Right. So sometimes what happens is that if you have to think open-mindedly. सो 2020 2021 के पहले मैं तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करता नहीं था। मैं अभी भी आई एम फुल्ली इनटू इक्विटी, राइट। बट ये तो मेरा लॉन्ग टर्म प्लान, रिटायरमेंट प्लान, विच इज द मोस्ट ऑप्टिमल वे टू डू इट। अगर मेरे को बोलेगा रिटायरमेंट प्लान करा, चलो कल से आधा पैसा डेट में डाल दो, तो मेरा अगर आधा पैसा 7% पे होगा, मेरे इक्विटी का वैल्यू आधा होगा, मेरा नींद नहीं उड़ेगा। अगर मेरा आधा पैसा डेट में होगा ना 7% पे, उससे मेरा नींद उड़ जाएगा। सो आई वुड ऑलवेज थिंक दैट व्हाट इज द बेस्ट वे टू plan. So I thought that this is a good way to plan.
एंड रेसिडेंशियल रियल एस्टेट में रेंटल यील्ड्स बहुत कम होते हैं ना, 2.5-3% पर एनम के होते हैं. कमर्शियल रियल एस्टेट में 7 to 9% पर एनम के हो गए, राइट? एब्सोल्युटली तो राइट. अगर अप्रिशिएट होते हैं प्रॉपर्टीज, तो अगर इवन इफ वी अज्यूम कि हर साल कितना मतलब कितना अप्रिशिएट हो सकता है, लाइक नहीं, सो या यू आर राइट जिसको कुशल, कहाँ पे लिए हो, कब लिए हो, इट हाँ. मैटर्स. Okay. सी यू आर राइट. देखिए, इट्स अ वेरी गुड वैलिड पॉइंट. जहाँ तक मेरे को पता है, if I'm not wrong, say Pune, I don't think that has appreciated as much as say Gurgaon or Lower Parel Prabhadevi, for example, or even Goregaon or Borivali, right? So, I mean, say if you buy real estate, say in Kolkata, or if you buy in, it depends here. I mean, say Rajkot and Ahmedabad has appreciated a lot, right? Gurgaon and Mumbai suburbs has appreciated a lot. I don't know how much Thana has appreciated, for example. Maybe appreciate in future. I'm bullish on Thana in future, but I don't think as of yet it has appreciated so much. I don't know. So it depends where you buy, what time you buy. But आपने बहुत interesting point बोला about the yields. So thanks for clarifying. Commercial obviously generally is 7-8%. If you have lent, if your tenant is a bank or a great financial institution, so the yield may be as low as 6-7%. But still commercial will be 7-8-9, depends on the building and the tenant. लेकिन residential obviously is as low as 3%, sometimes 2%. But पता है कुशल, that is a little bit misleading. क्योंकि आप लॉजिकली सोचो कि अगर आप ये बोलते हो कि भाई रेजिडेंशियल का रेंटल यील्ड हमेशा लो होता है, आर यू मीनिंग टू से दैट रेंट्स डोंट गो अप? रेंट्स डू गो अप, राइट? रेंट्स तो ऊपर जाते हैं. तो रेंट्स अगर ऊपर जाते हैं, फिर भी रेंटल यील्ड क्यों 2-3% ही रहता है? क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ रहा है ना. करेक्ट. अच्छा, अब डिनोमिनेटर क्यों बढ़ता है? क्योंकि मुंबई जैसे शहर में एंड यूजर डिमांड है. सो एक्चुअली इफ यू आस्क मी ना, जब लोग बहुत आमतौर पे सोशल मीडिया कहीं पर लिख देते हैं ना कि रेजिडेंशियल तो लेना ही नहीं चाहिए क्योंकि रेंटल यील्ड बहुत कम होता है, तो मेरे को भी पता है ना वो तो. I would not buy residential to give it on rent to someone. I'll be very conscious where I'm buying, what time I'm buying, how, what is my outlook on it. Is there any remote chance also that I might end up living there? You're not supposed to collect multiple residential properties and just hold it. If I feel, I might sell it. Correct? But I would not buy residential real estate to give on rent to someone. And let me also tell you, जहाँ पे रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का रेंट का यील्ड बहुत ज्यादा होता है ना, वहाँ पे प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन और एंड यूजर डिमांड नहीं होता. आप दुबई ले लो, फॉर एग्जाम्पल. दुबई लोग क्या बोलते हैं कि रेंटल यील्ड हमेशा 7-8% होता है, राइट? क्यों 7-8% होता है? क्योंकि उधर एंड यूजर डिमांड कम है, सबको रेंट पे ही रहना है. आप वहां पे प्रॉपर्टी सेकेंड सेल में बेचने जाओ तो आपको सही दाम पता चलेगा और फिर आपको रियलिटी पता चलेगी. मुंबई में आप सेकेंड सेल में भले रेंटल यील्ड 3% है, आप घर बेचने को निकालो, एट अ प्राइस आपका घर 1 महीने में बिक जाएगा. इफ यू टेक एनी ऑफ दिस गोरेगांव, अंधेरी, लोअर परेल, वेरेवर, डिपेंड्स कहाँ पे कितना सप्लाई है, वो सब मैं समझता हूँ, अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ. बट जहाँ रेंटल यील्ड कम होता है ना, वहाँ लिक्विडिटी भी अच्छी होती है, एंड यूजर डिमांड भी अच्छा होता है. जहाँ पे रेंटल यील्ड बहुत हाई होता है ना, वहाँ पे एंड यूजर डिमांड नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है. दिस people should keep in mind actually. Yeah, no, absolutely. Very, very valid point, and thanks for clarifying this. Because क्या होता है कि सबको लगता है कि हाँ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट है तो 2-3% का यील्ड है तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए. बट सच अ ब्रिलियंट पॉइंट कि यील्ड सेम हो रही है बिकॉज डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है, तो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है, विच इज द केस. मेरे को लगता है कि जैसे मुंबई में मैं जस्ट थोड़ा स्टडी कर रहा था रियल एस्टेट. माय डैड कम्स फ्रॉम अ रियल एस्टेट बैकग्राउंड, तो उनसे भी मैं बात कर रहा था. तो अभी जो नवी मुंबई है, स्पेसिफिकली पनवेल, बहुत लोग वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे मतलब रियल एस्टेट का बूम आ सकता है और बुलिश है काफी लोग बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट बीइंग बिल्ट एंड ऑल ऑफ दैट. तो वहाँ पे प्राइजेस अभी आई थिंक कुछ 12-15 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट है बाइंग की, एंड दिस इज एक्सपेक्टेड टू गो टू 20-25,000 इज व्हाट पीपल आर सीइंग. आपके कोई व्यूज है पनवेल या नवी मुंबई मार्केट? पॉसिबल, बट सी क्या होता है मालूम है, वन मोर थिंग, आई एम वेरी कॉन्शियस दैट आई एम स्टॉक मार्केट गाय, आई एम नॉट फ्रॉम द रियल एस्टेट इंडस्ट्री. सो आई एम क्वाइट श्योर कि जब तक मेरे को ऐसा पता चले कि भाई यहाँ पे दाम बढ़ने वाला है, तब तक आई एम क्वाइट श्योर दाम बढ़ गया होगा ऑलरेडी. तो रियल एस्टेट में मैं अपने आप को इतना नॉलेजेबल नहीं समझता हूँ. बट येस, यू आर राइट, क्योंकि मुंबई की तो एक पिक्यूलियरिटी है ही. आई डोंट सी, बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं मुंबई के बाहर से, उनको शायद पता नहीं है
मुंबई का ना मैप देखोगे तो लेंथ है, बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो जहाँ पे हम बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल से लोअर परिल, यू नो व्हाट इज द विड्थ? इट्स barely 2 kilometers. इस तरफ दरिया, इस तरफ दरिया, एज द crow flies is maybe 2 to 3 kilometers. Correct? Yeah. So that's why people keep saying Mumbai is vertical. Hmm. तो लाजमी है कि भाई कब तक यहाँ पे, जैसे जो मुंबई ये माहिम, प्रभा देवी, वर्ली, बांद्रा तक, कब तक वर्टिकल ग्रोथ होएगा ना? और वर्टिकल ग्रोथ का लिमिट है, मतलब कितना ट्रैफिक होगा, कितनी कार पार्किंग होगी. आज किसी बिल्डिंग में चले जाओ 10 फ्लोर तक तो पार्किंग है, वो सारी गाड़ियों को उतरना तो नीचे ही है. So it's quite logical and believable. Even before you asked me, I said that maybe Thana will appreciate in future, right? Because if you compare the routes, all the infrastructure development is happening now on the eastern seaboard of Mumbai. और उसका लॉजिक है भाई कि ये पनवेल वगैरह जो आप बोल रहे हो, that seems logical, but मेरा ऐसा कोई specific knowledge नहीं है उसके बारे में. So let's go back to stock markets and let's go back to your equity investing journey as well. तो ICICI Prudential आपने जब ज्वाइन किया था तब आपने वहाँ पे सेल्स रोल पे ज्वाइन किया था. Yes. You were selling mutual funds. तो जब आपने ये सेलिंग का रोल लिया, एनी स्पेसिफिक मेमोरी एनेक्डोट यू रिमेंबर, या आपने कैसे जो ऑब्जर्व किया इंडियन कस्टमर, तभी कुछ ऐसे इंसाइट्स मिले आपको जब आप म्यूचुअल फंड सेल कर रहे थे तभी? So one was industry, there were some industry insights and there were some sales related insights also. चलो I'll tell you, you know, industry insight as well as sales insight. तो sales का insight मैं आपको पहले बोलता हूँ कि भाई जिसको sales करना आता नहीं है उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए. So एक बार क्या हुआ ना कुशल, तभी this is 1999, okay, and one person who's say a wealth manager. तो मेरा काम क्या था कि I mean I was technically always, I would like to believe I was technically quite sound. तो late 90s में ना बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड फंड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स की प्राइसिंग कैसे होती है, वैल्यूएशन कैसे होती है, ये काफ़ी सारी चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड समझाया जाता था. सो एनीवे somebody took me to meet a very rich guy and said कि ये साहब है ना इनको शायद पता नहीं है कि अगर आप म्यूचुअल फंड के इनकम फंड में पैसा लगाते हो तो देखिए एक सिंपल चीज़ है, अगर आप एक फिक्स डिपॉजिट खरीदते हो तो आपने 1 साल का फिक्स डिपॉजिट खरीदा तो आपको 1 साल का इंटरेस्ट देगा ना, वो जो भी समझो 1 साल का रेट चल रहा है 9%, तो वो 9% मिलेगा आपको. इनकम फंड्स में क्या होता है कि यू गेट अ कैरी, मतलब कि बॉन्ड्स जो है ना वो तो आप 10 साल, 5 साल, 15 साल कोई सा भी बॉन्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं ना, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो आप उस फंड में 1 साल के लिए है, लेकिन अंडरलाइंग फंड तो 5, 10, 15 साल का कोई भी बॉन्ड पकड़ के रखता है. और मैथमेटिकली जब ब्याज दर गिरते हैं तो बॉन्ड्स के दाम, NAV ऊपर जाती है, बॉन्ड के दाम भी बढ़ते हैं. तो ये सब जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी कि भाई जो लोग बॉन्ड खरीद रहे हैं, FD खरीद रहे हैं, उनको इनकम फंड कैसे समझाया जाए कि भाई क्या क्या लाभ होते हैं इनकम फंड में आपको पैसा डालने से. तो किसी ने मुझे बोला कि भाई ये साहब बहुत रईस है, इनको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं है, आप इनको जाके मिलो. सो वेरी रिच गाय, ओके, एक इंडस्ट्री था, वेरी रिच पर्सन. उनको मैंने पूरा समझाया कि क्यों करना चाहिए, क्या टैक्स बेनिफिट है, क्या आपको, आप भले 1-2 साल के लिए रखोगे, 1 साल के बाद ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा, आपको इतना अप्रिसिएशन मिल सकता है, सब कुछ मैंने समझा दिया 1 घंटे में, जो पूरी सिंसियरिटी के साथ. फिर एंड में ना वो साहब ने बोला, अच्छा आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, कितना पैसा लगाना चाहिए मेरे को. तो अब एक रईस आदमी अगर आपको पूछ रहा है कितना पैसा लगाना चाहिए, तो भाई तमीज से सोच के जवाब देना चाहिए. तो मैं तो बहुत यंग था, 23 ईयर्स का था. तो मैंने उनको बोला, सर आपके ऊपर है, मिनिमम तो 5,000 रुपीज है. उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, बोले यार ये तो कोई छोटे मोटे लोगों का प्रोडक्ट लग रहा है. तो जब मैं बाहर आया तो जो साहब मेरे को लेके गए थे बोले, यार तुम यार मतलब कहाँ बैठे हो, किससे बात कर रहे हो, तो देखो यार तुम मतलब उसका यू नो सी हिज पोटेंशियल. Who told you to say? He's asking you how much to invest. You are telling him minimum 5,000. So then I'll tell you another funny anecdote. तो obviously engineering किया है, काम किया है, B school, वो सब ठीक है. लेकिन जैसे एक बार मैंने गया एक किसी के पास, तो देखिए टेक्निकली हम क्वालिफाइड है, मार्केट ये सब हमको समझ में आता है, लेकिन इतने रईस लोग इतने बड़े पैसे समझो देखे नहीं था ना. दिस इज ऑल्सो इन 1999. मैं गया, एक जो हमारे एक बॉस थे, उन्होंने मेरे को बोला कि इनको आपको प्रेजेंटेशन करना है. और इन लेट 90s में ना लैपटॉप और प्रोजेक्टर ले जाके सब एक्सेल शीट पे और पावर पॉइंट पे सब, ये सब कोई नहीं करता था. मैं लैपटॉप और प्रोजेक्टर लेके घूमता था भाई. यहाँ से समझो नासिक भी मैं प्रोजेक्टर लेके गया हूँ. हाँ. सो गए वहाँ पे, प्रोजेक्टर लगाया, वाइट दीवार पे समझाया सब.
फिर पूरा हो गया, फिर वो साहब ने बोला यू नो आवर कंपनी इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विथ यू, तो आप यू नो एंड इंसिडेंटली यू कम टुडे। तो तभी ये नहीं होता था कि 12 बजे के पहले पैसा ट्रांसफर करो, ये एनएवी ये सब नहीं होता था। बोले ठीक है, हम अपने अकाउंटेंट को बोलेंगे आपके फंड में इन्वेस्ट करना है, वो पेमेंट चेक वेक का तैयारी करेगा, आप एक काम करो, आप फॉर्म फिल करो। तो उन्होंने बोला कि इनकम फंड में हम 5 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, आप फॉर्म फिल करो। तो अभी क्या है कुशल, हमको वो 5 करोड़ रुपए इतना रिटर्न, ये वो सब गिनती सब आती है, लेकिन अपने हाथ से 5 करोड़ लिखा नहीं है कभी, 5 करोड़ देखा नहीं है कभी। तो ये 1999 है, तो उसने मेरे को बोला कि तुम चलो फॉर्म भरो, हम अपने अकाउंटेंट को बोलेंगे आपको चेक देगा। तो मैं यार 5 करोड़ भरते कैसे फॉर्म में? तो मैं ना जैसे अपने को सिखाया वैसे 1, 10, 100, आप राइट से लेफ्ट काउंट करते हैं ना, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे लिखते जाते हैं। मेरे साथ होते बोले यार तेरे को 5 करोड़ लिखना नहीं आता है, तेरे को कौन चेक देगा यार? So these are the kind of things which happen, you know, because you are clueless, right? I mean, there's no malintent in this. I'm doing my job and I was qualified to do my job. बट अचानक से मेरे को पहली बार मेरे को इसे बोला कि तुम यार 5 करोड़ लिखो, तो इंग्लिश में तो लिख देते हैं 5 करोड़ ओनली, राइट? बट पहली बार 5 करोड़ लिख रहे, तो हमको कैसे मालूम 5 करोड़ का चेक कैसे बनता है? सो देन दैट गाय वेंट आउट, ही सेड अच्छा आप फॉर्म भरो, ही वेंट आउट। तब तक किसी और ने मेरे को हेल्प किया कि भाई ऐसे ये ऐसे, एंड आई वुड हैव रिटन करेक्टली ओनली, बट माय वे ऑफ काउंटिंग वाज वेरी रूडिमेंटरी, जो स्कूल में सिखाया है, राइट? तो इस तरीके के फनी इंस्टेंसेस काफी हुए हैं एक्चुअली। बट या, सो इफ यू आस्क मी इंडस्ट्री वाइज, so these were all my sales experiences, but you know in early days industry कैसा था पता है आपको? कि स्टॉक मार्केट का अगर हम बात करें, there was actually, if you ask me, in the late 90s, other than people who had extra money or play money, you know, चलो कुछ अलग करते हैं, उसके अलावा वाकई में अगर आप मेरे को बोलो तो स्टॉक मार्केट में आने का कोई ज्यादा साउंड रीजन नहीं था। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि लेट 90s में जब समय का बात कर रहा हूँ जहां हम जाके लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बताते थे, तब है ना कुशल, आरबीआई है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आरबीआई यूज्ड टू इशू समथिंग कॉल्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीफ बॉन्ड्स। तो गवर्नमेंट बोरो करती थी आम जनता से। ऑफ कोर्स स्मॉल सेविंग स्कीम्स भी होते थे, जैसे पोस्ट ऑफिस, एनएससी, किसान विकास पत्र, ये सब भी होता था। तो गवर्नमेंट का ये जो आरबीआई बॉन्ड्स इशू करती थी ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीफ बॉन्ड्स, उसका रेट होता था 11%, टैक्स फ्री। तो क्योंकि गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो रिस्क फ्री है और टैक्स फ्री भी है। फिर आप समझो पोस्ट ऑफिस में पैसा रखते थे ना लेट 90s में, तो मंथली इंटरेस्ट आता था, उसका एनुअल रेट 10% था, मंथली पे आउट 10% इंटरेस्ट। बड़े बड़े जो दिग्गज इंस्टीट्यूशंस हैं, राइट, 17%, गुड क्वालिटी क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस वर बोरोइंग 17%। ओके, कोई एनबीएफसी अगर कार लोन वगैरह दे रही है ना, तो 18-19% पे बोरो करते थे वो लोग, करेक्ट? तो यार अगर if government is borrowing at 11% tax free, if your post office and NSC and all these things are going to give you 10%, and if you know good institution is going to give you 16-17%, तो स्टॉक मार्केट में आने का तो क्या होता था कि जैसे हम लोग बोलते थे लोगों को इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए लॉन्ग टर्म, तब तो क्या है, मिस्टर बफेट को भी कोई जानता नहीं था, और हमारे स्टॉक मार्केट का क्या हिस्ट्री था। थोड़ा चला तो हर्षद मेहता का प्रॉब्लम हो गया, फिर चला तो आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई, वो न्यूक्लियर ब्लास्ट हो गया, सैंक्शंस लग गए, फिर चला तो टेक बबल बस्ट हो गया, फिर चला तो कोई केतन पारेख का स्कैम हो गया, फिर चला तो गल्फ वॉर हो गया। सो माय अर्ली डेज इन द मार्केट, देयर वर मेनी टाइम्स वन यूज्ड टू थिंक यार ये सही जगह है कि नहीं, मतलब यू नो व्हाई आर वी इवन। तो इंडस्ट्री वाज वेरी चैलेंजिंग एंड देयर वाज नो फंडामेंटली साउंड रीजन फॉर पीपल टू पुट मनी इन द स्टॉक मार्केट अनलेस दे वर रियली सीकिंग रिस्क। If you didn't want to take risk, you could get 10-11%, which is very good number at back then also. तो वो काफी चेंज हुआ है अभी। वेरी इंटरेस्टिंग। एंड तभी आई थिंक बिल्कुल भी मतलब म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल बिल्कुल भी ऐसे पॉपुलर थे ही नहीं, राइट? मतलब तभी किसी को ऐसे पता भी नहीं था म्यूचुअल फंड्स नहीं, व्हाट इज म्यूचुअल फंड भी नहीं, कैपिटल मार्केट क्या होता है, बॉन्ड मार्केट क्या होता है, इक्विटी मार्केट क्या होता है, उसमें निवेश करने का सही जरिया म्यूचुअल फंड के थ्रू क्यों होता है। क्योंकि कुशल, द पॉइंट वाज नॉट म्यूचुअल फंड, द पॉइंट वाज कि भाई लोगों को आपको बताना है कि वेरिएबल रिटर्न का प्रोडक्ट क्यों लेंगे आप। क्योंकि समझो आप कहीं पे जॉब करते हैं तो पीपीएफ कटता है, तो भाई पीपीएफ भी तो 12% देता था ना, करेक्ट? तो पीपीएफ का 12% है, गवर्नमेंट का बोरोइंग 11% है,
तो आपको सबसे पहले तो लोगों को ये समझाना है कि भाई अश्योर्ड रिटर्न से हटके आप एक म्यूचुअल फंड में जहां पे डेली एनएवी वेरिएबल रिटर्न है, तो अश्योर्ड रिटर्न से हटके आप वेरिएबल रिटर्न की तरफ क्यों जाएंगे? तो पहले तो वही सिखाना पड़ेगा। फिर उसमें म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सही जरिया वो सिखाना पड़ेगा। तो क्या होता था पहले कि म्यूचुअल फंड पता नहीं था, तो व्हाट इज कैपिटल मार्केट, व्हाई म्यूचुअल फंड इज द राइट वे, ये सब सिखाते सिखाते बंदा बोलता था यार कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन चलो तुम आए हो, तुम बोल रहे हो तो कुछ कर देते हैं। एंड देन दे वुड जस्ट पिक द बिगेस्ट ब्रांड, क्योंकि तभी क्या था कि भाई कैटेगरी तो पता ही नहीं है, तो भाई कैटेगरी पता नहीं है, नया कुछ ट्राई कर रहे हैं, तो चलो कम से कम ये नाम भरोसे का है, इस नाम पे करो। तो नए एएमसीज या अननोन ब्रांड्स, जैसे एज ए प्रोफेशनल सेटअप व्हाइट ओक कैसे हम सहजता से अभी बिल्ड कर रहे हैं पिछले 5-7 साल से एज अ प्रोफेशनल कंपनी, वैसा लेट 90s में शायद मुश्किल होता। Got it. And at ICICI Pru only, so I read somewhere that Mr. Nimesh Shah asked you one question, justify your cost, and that particular incident changed the way you were thinking about this. तो क्या exactly था वो incident? वो story क्या थी? Wow, you have done fabulous research. So he's so I have been, Kushal, I always tell, I've been very, very, very lucky with bosses. So and very lucky with bosses, and obviously Mr. Shah is CEO for ICICI. So he's a great mentor for me actually. So he brought about this objectivity in me. भाई outcome orientation होना चाहिए. The point is not about what cost and all these things. The key thing he taught me is that you're here to do something and you have to get an outcome for it, right? But the funny thing was that, so he said, how much how are you making how are you making money for your organization, how are you making money for your clients, right? So generally what happens on the fly, अगर कोई आपको ऐसा सवाल पूछता है तो most people don't answer, correct? But कई बार क्या होता है कि जब आपको कोई ऐसे, you are caught off guard, right? So the question is impromptu and you are caught off guard. So the trick is not to necessarily give accurate answer. The trick is you must give an answer. That is the key point. So basically I gave him a back of the envelope calculation that this is what we have done. So that was a learning. I mean, I've learned, I've been very, very lucky with bosses. I have worked with some of the best people like Nilesh Shah, then of course Mr. Nimesh Shah, then Mr. Motilal Oswal, Mr. Ramdev Agarwal, then Mr. Naveen Agarwal. Of course, you met my boss, Mr. Prashant Khemka. So, we have some great people, and I have been blessed to work with all of these people as my bosses. So any specific interactions or memories or learnings from Mr. Motilal Oswal, Ramdev Agrawal, Mr. Prashant Khemka? So definitely, see, I'll tell you 2-3 things. Jaise I'll tell you an anecdote. I joined, I was in ICICI till end of 2012. So end of 2012, January 2013, I joined Motilal Oswal. So around the first day when I joined, both of them, Mr. Oswal and Mr. Agrawal, both of them gave me a book each. Okay. So the book that Ramdevji gave me is, I still have it. I still have that very same copy with all my markings. It's a book called Understanding Michael Porter. It is written by Joanne Magreta. Okay. So obviously we all, competitive advantage, competitive strategy. We've read these big tomes of Michael Porter. But this lady was a student of Michael Porter. And she has written a very synthesized version to understand, that how Michael Porter thinks and how you should, scale or build businesses. And Mr. Oswal gave me a book which is called Ultimate Sales Machine, which is written by Chet Holmes. Now, it's not, Ultimate Sales Machine is not like, it's not like sales. It's sales strategy basically. That how can you become a process oriented? How can you see, most sales people I have seen in my life, they are individual, they reek of individual brilliance. करेक्ट. देखिए, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आप काफी आगे जा सकते हो. इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आप सस्टेनेबल, रेप्लिकेबल आउटकम्स नहीं ला सकते हो, क्योंकि उसके लिए आपको टीम चाहिए, प्रोसेस चाहिए. सो दैट बुक इज अबाउट प्रोसेस ओरिएंटेशन इन व्हाटएवर यू
do, right? So yeah, these were so, and then I don't know if you know this. Maybe you would meet more people. They write knowledge first, and that organization truly embodies that. I mean, I have presented that we used to, at some point in time, we used to run a book club. So you read a book and you present it to the rest of the senior management. Oh, okay. So I've done it 2-3 times. Which book did you present? So I'll give you this is a very funny thing. When I was reading this book, my mom thought that I have gone into depression or something. क्योंकि misunderstanding था. Book का title है No One Understands You and What Do You Do About It. But it's not as bad as the title sounds. It's actually a book on communication skills. Okay. Where, how do you make sure that you understand people and people understand you? It's a book on communication skills. Then there is another book called Willful Blindness. Like कई बार जो चीज हमको, जैसे हाउ डू किड्स प्ले हाइड एंड सीक, जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, वो जब हाइड एंड सीक खेलते हैं ना, तो वो आंख दे फील के अगर मैंने आंख बंद कर ली है, अगर मुझे कोई नहीं दिख रहा है तो दूसरों को भी मैं नहीं दिख रहा हूँ, राइट? सो हाउ डू पीपल प्ले गेम्स with how the mind plays games with you, and how you ignore or fail to tackle what you should have. See, in life, in business, in relationships, there are many things which are evident, but हम उनको recognize करना postpone कर रहे हैं, या हम उनको जानबूझ के नजरअंदाज करते हैं. भाई अभी मेरे को इससे डील नहीं करना है, या मेरे को ये चीज एक्सेप्ट नहीं करना है, या रिकॉग्नाइज नहीं करना है. फिर उससे आगे जाकर के बड़े ब्लो अप्स होते हैं. So this book is Willful Blindness. It is about avoiding, tackling things and avoiding disasters. Yeah. So then there are some very, very good books actually. Like, there's a very famous book called Influence. That's very famous, like Robert Cialdini. So yeah, some of these books are very powerful. तो आप बता रहे थे, हाँ, तो आप present कर रहे थे in one. Yeah. So we used to read the book and share the learnings with people, and then field questions like what do people think and all. Got it. Yeah. So I've learned a lot. I mean, sometimes people think that you can't, like, a lot of time people say, what nonsense, you can't run a business by reading books. Obviously, none of us runs a business by reading books, but I think they make you think. And sometimes they give you right framework to think. Sometimes they make you think in the right direction or ask the right questions. और कभी क्या होता है, रीडिंग कोई फ्यूटाइल नहीं जाता, बिकॉज कहाँ पे पता नहीं क्या कनेक्ट करेगा. आपने कुछ रीड किया होगा, ऑब्वियसली इट्स ऑल न्यूरल नेटवर्क इन योर ब्रेन, सो समवेयर समथिंग विल कनेक्ट. I was doing a podcast with Ramdev ji, and उन्होंने power of compounding बहुत beautifully explain किया था, and वो मतलब he's a big fan of power of compounding. Mathematics, rule of 72 explain किया था podcast पे, कि उन्होंने घर खरीदा था ₹150 per square feet में, वो 1.5 लाख रुपए per square feet हो गया in a span of 45 years. People will think ये 1000x हो गया है, but अगर वो rule of 72 से उन्होंने मेरे को mentally बोला था कि क्या, you tell me what is the return, CAGR. I didn't have anything calculator, तो rule of 72 apply करके निकाला तो कुछ 13-14% आ रहा था, which is like not a lot if you see कि 1000x हुआ है, but 45 years में हुआ है, तो which is like 13-14%, which is equal to what the markets will also give. The rate at which he can calculate, I don't think any of us can calculate, but yes, by working with him, at least one realizes that that's the way to calculate. See, हम लोगों को स्कूल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिखाते हैं ना, हमको 1 2 4 8 16 32 64 128 256 नहीं सिखाते हैं. That is the whole challenge. But actually a lot of phenomena are non-linear, so that's very important. Yeah, actually that's so brilliant. Like 1 2 4 16 वो सिखाना चाहिए, basically 2 raised to 5 2 raised to 6 2 raised to 7. Yeah, I mean that would be helpful, right? If you are taught 3 6 12 24 48, that would really be helpful, because there are many things which are non-linear, like managing money, compounding of your efforts. Then वो 10,000 hour का rule है ना, कभी कोई भी चीज आप 10,000 घंटे तक लगातार करोगे तो then you will become a expert at it, because your efforts and your knowledge also supposed to be compounding. Right? Then for example they say that कि वो पत्थर तोड़ने के लिए 1000 बार हथौड़ा मारता है, तो भाई जिस हिट से पत्थर टूटा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके पहले के 1000 वो पूरा उसका अंदर का स्ट्रेस कंपाउंड हो रहा है. So all of these, so actually kids need to be taught non-linear thinking. I think that is very important. Yeah. But yeah, you're right. I mean, the way Ramdev ji can calculate, I don't think anybody can calculate. Yeah, I agree.
एंड मोतीलाल ओसवाल एएमसी की बात करते हैं तो यू जॉइंड इन 2013, यू वर देयर टिल 2020, राइट? जी जब आपने ज्वाइन किया, द AUM ऑफ मोतीलाल ओसवाल एएमसी वाज 1300 crores. व्हेन यू लेफ्ट इट वाज 42,000 crores इज व्हाट जी आई रेड. सो यहाँ पे लाइक ये 7 साल में कौन से ऐसे बेट्स या कौन से ऐसे आपके कुछ स्पेसिफिक चीजें बहुत अच्छे से वर्क करी विच हेल्प यू टू स्केल फ्रॉम like 1300 to 42,000 crore, which is like a big jump. So see, ultimately, Kushal, I'm always, when assets under management of a mutual fund company are reported, I'm always conscious that, it's the client's assets, right? And it's the client's assets which are to be grown. And, obvious है कि भाई अगर X का 20x या 30x या 40x होता है तो वो इतने सारे इनफ्लोज तो क्लाइंट्स देते नहीं है. It's the existing money which has to be compounded, or the funds, the performance, the investment. So first thing is that whether it is my prior firm or now in White Oak, the reality is that these organizations are endowed with some investment acumen, right? Because asset management company mein, to be truthful, I can be a CEO, I can be a business strategist, I can be good at many things, but अगर हम लोग क्लाइंट्स का पैसा ग्रो नहीं करेंगे और अगर हमारा इन्वेस्टमेंट एक्यूमेन सही नहीं होगा ना तो ये कोई भी चीज. सो इन्वेस्टिंग, सो एसेट मैनेजमेंट, I always tell people the 90% rule of this business is investing. You can do everything else, but if you're not good with investing and if you don't produce outcomes, so everything else will, 1 multiplied by 0 will be 0 only. So first is that investment, like in Motilal Oswal, obviously they have good investment acumen. I mean, there is a process, there is a team. But 2-3 things I can tell you. One is that why we were able to work together and grow the money for clients and grow the assets also. Unless and until you don't grow money for clients, unless you don't produce results, people will not give you more money to manage. That's how the assets actually grow, right? So how would that happen? 2-3 things. See, first is that, again, here also being, 2012 when you mentioned, it was the most contra bet. I don't know how many people, youngsters who are listening will know that the stock market in India peaked in 2008. 2009, 10, 11, 12, 13, 14, right up to maybe 2015, things were not so great. तो तभी है ना कि अगर हम बोलेंगे कि भाई हम लोग केवल इक्विटी मैनेज करते हैं, फिक्स्ड इनकम नहीं करते हैं, ऐसा मतलब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 75% कॉर्पस केवल फिक्स्ड इनकम था. आपको मैं याद दिलाऊं 2012 में पूरा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 8 लाख करोड़ से भी नीचे था और उसके अंदर इक्विटी तो 1,75,000 या ऐसा ही कुछ था. द इक्विटीज वाज 20%, फिक्स्ड इनकम वाज 80%. और इक्विटी में इन्वेस्ट करने का तब भी इतना कोई चलन नहीं था और उसके पहले 5 साल तक मार्केट डोल्ड्रम्स में था. अब आप लॉजिकली सोचो, अगर मैं आपको आके बोलूं कि कुशल आप मेरे को इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो, हम लोग इक्विटी में अच्छे हैं, तो बोलेगा भाई 40 एसेट मैनेजमेंट कंपनियां सब वही बोलते हैं. अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ हम लोग फिक्स्ड इनकम नहीं मैनेज करते, तो बोले अच्छा तुम फिक्स्ड इनकम नहीं मैनेज करते तब तो तुम इक्विटी करते होगे. सो वन थिंग यू शुड ऑलवेज लर्न that your positioning is built by what you say no to. See, if what happens is most people, they say what they are good at. And then the person who's listening, they don't register it. Because everybody is saying what they're good at. If you loudly say what you don't do, then by exclusion people realize, अच्छा तो ये नहीं करता तो ये तो करता होगा. Right? So I think having a clearly defined sharp positioning, and of course having acumen. The third thing, which we used to do was before I joined there, or whatever landscape I observed, the industry used to market products and performance. Back then, it was probably the first house to talk about process. क्योंकि आप एक चीज हमें ध्यान में रखिए, whichever company I'm working in, I never forget one thing, that if you're managing money in the stock market, you are dealing in uncertain outcomes. The outcomes are not in your control. You can apply a process and you can narrow down कि भाई outcome, what is the range of outcomes. देखिए अगर अच्छा प्रोसेस है ना, देखिए क्या है कि अगर आपका कोई प्रोसेस ही नहीं है तो आपका टेक अ क्रिकेटिंग एग्जांपल, आपका प्रोसेस नहीं है
यू जस्ट आप हर दिन मैच में पिच पे आ रहे हैं और आप बल्ला बल्ला घुमा रहे हैं, तो भाई कभी 0 होएगा, कभी 200 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप बस बल्ला घुमा रहे हैं। आपका मतलब ऐसा कोई कौन सा पिच, कौन सा बॉलर, कंसिस्टेंसी, प्रोसेस, लेट्स से यू आर वीक ऑन प्रोसेस, बट बल्ला घुमा रहे हैं आप, तो कभी 0 बनेगा, कभी 200 बनेगा। प्रोसेस होने से क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट में भी, ऐसे क्रिकेट में अलग प्लेयर, अलग पिच पे अलग आउटकम्स होते हैं। स्टॉक मार्केट में भी अलग दिन पे अलग मार्केट कंडीशन, अलग आर्थिक व्यवस्था, अलग आउटकम्स होते हैं। लेकिन प्रोसेस होने से क्या होता है कि भाई आप चाहे आप हर बार 200 नहीं बनाए, लेकिन 0 नहीं बनाएंगे आप, तो आपके आउटकम्स 0 और 200 के बजाय 20 और 120 के बीच में आ जाएंगे। तो भाई 0 और 200 का रेंज से तो भाई 20 और 120 का रेंज बेटर है ना। तो हमेशा एक चीज मैंने सीखा है कि जिस किसी भी जगह पे, जिस किसी भी कारोबार में, कहीं पे भी जहां पे आउटकम्स अनसर्टन है, आउटकम्स वेरिएबल हैं और आउटकम्स आपके कंट्रोल में नहीं है, वहां पे आप केवल प्रोसेस और इनपुट की क्वालिटी वो ही कंट्रोल कर सकते हो। When you cannot control the outcomes, when you're dealing in uncertain outcomes, when you're dealing in variable outcomes, means you cannot control or ensure the outcomes. The only thing you can control is quality and consistency of inputs. पहले है ना चलन ऐसा था कि लोग ऐसे प्रोडक्ट्स और परफॉर्मेंस मार्केट करते थे मानो कि भाई ये तो हम माहिर है, मतलब ये तो हम लोग पहले थे 2012-13 में जिन्होंने बोला कि भाई प्रोसेस पूछो, क्योंकि आउटकम तो सबका मतलब हर दूसरे साल अलग अलग आदमी नंबर बनाता है यहाँ पे। अभी भी आप देखिए, जैसे मेरा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे व्हाइट ओक में हम हमेशा लोगों को बोलते हैं पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे ध्यान दो। क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि हर दूसरे साल बेस्ट परफॉर्मिंग फंड, फंड हाउस और फंड मैनेजर चेंज हो जाता है, तो आप फंड खरीदोगे कैसे? तो यू डोंट वांट हाईएस्ट परफॉर्मर, यू वांट कंसिस्टेंट परफॉर्मर, और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी मैंने इवन इन माय प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन मोतीलाल ओसवाल में, यहाँ पे मैं हमेशा ये चीज पे स्ट्रेस करता हूँ कि लोगों को अपने रिटर्न्स मत बताओ। देखिए रिटर्न्स तो हर जगह पे दिखते हैं लोगों को, रिटर्न्स मत बताओ। आप ये बताओ कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट इज द प्रोसेस यू आर फॉलोइंग। क्योंकि अगर सामने वाले को कॉन्फिडेंस आए कि भाई आपका कंसिस्टेंटली आप एक प्रोसेस बता रहे हो और आप कंसिस्टेंटली उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, तो उनको एहसास होगा कि भाई चलो इनके आउटकम्स आर कमिंग फ्रॉम सम प्रोसेस। और जो आउटकम किसी प्रोसेस के द्वारा आते हैं ना, वो ये आउटकम रेप्लीकेबल, मतलब जिसको आप बार बार दोहरा सकते हो और जिसको आप कंटिन्यू या सस्टेन कर सकते हो। सो ये जो भी चेंजेस, मतलब जो भी हुआ, वो मेरे ख्याल में प्रोसेस के ऊपर फोकस करने से, प्रोसेस कम्युनिकेट करने से और पोजिशनिंग क्लियर रखने से, और लास्टली आई वुड से इनोवेशन। क्योंकि जब मैं मोतीलाल ओसवाल में काम करता था, तो देखिए आप जैसे नैस्डैक, S&P 500, काफी सारे प्रोडक्ट्स जो होते ही नहीं थे इंडस्ट्री में, वो भी तो ला के लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया था तभी हम लोगों ने। N100 जो आप बात जी कर रहे हो, जी जी। N100 में मैंने इन्वेस्ट किया था 2020 में, तब मेरे को पता चला था कि दिस इज अ प्रोडक्ट विच वाज देयर। मतलब नैस्डैक के 100 स्टॉक्स, Yes. वो बेसिकली आप इंडिया में तब बैठ के इन्वेस्ट कर S&P सकते 500 हो। भी लॉन्च किया गया था तब। अच्छा, ओके, गॉट इट। ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं है। जब कोविड स्टार्ट हुआ, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं 3rd-4th वीक ऑफ मार्च में कोविड एकदम पीक पे उसका पैनिक हो गया था। तो ऑब्वियसली कहीं जाना पॉसिबल नहीं था, फॉर्म प्रिंट करना, कागज भेजना पॉसिबल नहीं था। तो उसका जब हमने NFO किया था, तो वो शायद ही पहला ऐसा NFO होगा जहाँ पे कोई रोड शोज नहीं हुए, किसी ने किसी को कोई फॉर्म नहीं भेजा, किसी ने किसी को कोई ब्रोशर प्रेजेंटेशन कुछ नहीं भेजा, पूरा डिजिटल। अच्छा, और मुझे तो कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि तुम, ये कोविड चल रहा, तुमको फंड लॉन्च करने की पड़ी है। तो आई सेड यार मुझे क्या पता कोविड आ जाएगा यार, हम तो जो हमको सही फंड लगा उसका हमने रेगुलेटरी अप्रूवल के लिए फाइल किया, रेगुलेटर ने अप्रूवल दिया तो हमने फंड लॉन्च कर दिया, राइट। बट ये क्या है कि तभी ऑब्वियसली उस चीज पे, अब आप कौन सा फंड लॉन्च कर रहे हो उस पर तब लोगों का ज्यादा ध्यान देने का मूड नहीं था तभी। बट हम तो घर पे बैठे बैठे, तब S&P 500 तभी लॉन्च हुआ था, आप देख लीजिए 15 अप्रैल 2020 के आसपास। सो इन हाइंडसाइट दैट वाज अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, बट जब आप वहां पे होते हो तब तो सब डरे हुए होते हैं। राइट। लेट्स टॉक अबाउट योर कॉन्ट्रेरियन बेट्स दैट यू हैव टेकन इन योर लाइफ एज वेल। सो मैंने एक बार
एक पढ़ा कि व्हाइट ओक में आपने बेसिकली यू आर अगेंस्ट लॉन्चिंग अ स्मॉल कैप फंड, तो क्या थीसिस था आपका व्हेन देयर वाज अ स्मॉल कैप फ्रेंजी गोइंग ऑन कि सब स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, रैली भी हो रहा है, तब आपने कैसे डिसीजन लिया कि नहीं ये लॉन्च नहीं करना है हमें? नो तो प्रशांत जी हैं जो रमेश मंत्री हमारे सीआईओ हैं, तो हम लोग ये तो सी बहुत आई मीन एक लेसर नोन फैक्ट ये है कि व्हाइट ओक का इंडिया में इट्स दी probably amongst the largest FIIs investing into India Wow. and probably the largest research team in-house for an asset management company. मतलब पूरी इन्वेस्टमेंट टीम में करीब करीब 49 से 50 लोग हैं अभी। अभी टोटल AUM कितना होगा? 8 10 बिलियन के ऊपर। अच्छा, $10 बिलियन। 10 बिलियन के ऊपर। तो जो डोमेस्टिकली, मैं तो क्लैरिफाई कर दूं कि मैं तो डोमेस्टिक बिजनेस का सीईओ हूँ, बाहर का बिजनेस प्रशांत जी खुद देखते हैं, बट डोमेस्टिकली वी आर 33-34,000 करोड़, और ग्लोबली अगर आप देखें तो इसके ऊपर आप 6 बिलियन जोड़ दीजिए तो लगभग 90,000 करोड़ के आसपास, जस्ट ओवर 10 बिलियन। तो हमारी सबसे लार्जेस्ट रिसर्च टीम है, और हम लोग तो स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, प्री आईपीओ, हम लोग तो पूरे मार्केट में हर जगह इन्वेस्टेड है। लेकिन ऑब्वियसली योर क्वेश्चन इज अबाउट अ डेडिकेटेड स्पेसिफिक पॉइंटेडली स्मॉल कैप फंड। तो देखिए, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, हमारे कोई से भी फंड में सब में स्मॉल कैप एक्सपोजर है, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि भाई ऐसा नहीं कि स्मॉल कैप ज़्यादा करेगा या कम करेगा। द पॉइंट इज कि भाई स्मॉल कैप जो है वो बड़ा यूनिवर्स है, उसमें हेट्रोजेनाइटी है। स्मॉल कैप में जो सेक्टर्स होते हैं वो भी ऐसे सेक्टर है जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, जिसमें हेट्रोजेनाइटी है। जहाँ पे देखिए, जहाँ पे हेट्रोजेनाइटी होती है, बड़ा यूनिवर्स होता है ना, वहीं पे स्टॉक पिकिंग का स्किल मैटर करता है। देखिए, अगर मैं आपको बोलूँ HP, BP, IOC, TCS, इन्फोसिस, JSW स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, तो क्या ये थोड़े मैक्रो ड्रिवन सेक्टर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। कभी कभी ये टैंडम में साथ चलती है, चली तो सब चली, नहीं चली तो कुछ नहीं चली। सेक्टर के साथ काफी उनका क्लोज कोरिलेशन होता है। बट अगर मैं आपको स्मॉल कैप में बोल दूं कि भाई डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज, केमिकल कंपनीज, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, डाइनिंग एंड ईटिंग आउट कंज्यूमर, तो ये सब में हेट्रोजेनाइटी काफी है। सेक्टर ना चले लेकिन आप कुछ ऐसा स्टॉक निकाल सकते हो कि जो चल गया। सो वी आर ऑलवेज इन्वेस्टेड इन स्मॉल कैप, क्योंकि उसमें हेट्रोजेनाइटी, उसमें हमारा अल्फा बनता है। लेकिन देखिए, आप डेडिकेटेड एक फुल स्मॉल कैप, वो भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कुशल, मैंने बार बार देखा है कि स्मॉल कैप की जो म्यूचुअल फंड्स है स्मॉल कैप के, और जो स्मॉल कैप का इंडेक्स ही है, इसकी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। तो जब वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है ना, तो उसमें जब खराब होता है तो लोगों का नुकसान भी होता है, और वो एकदम उससे फिर नाराज हो जाते हैं। और जब अच्छा चलता है ना, तो रिटर्न भी बहुत बनता है, और लोग उससे बहुत खुश और एक्साइटेड भी हो जाते हैं, राइट। इसकी वजह से क्या होता है कि देखिए, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा पैसा कब आया, अभी आपने जिक्र किया 2024, वहां पे पीक हुआ। अभी तो थोड़े समय पहले तो 25% डाउन था वो। तो ये तो हिस्ट्री है। देखिए, 2018 जनवरी में पीक हुआ, 2018 में स्मॉल कैप में बहुत पैसा आया, 2020 आते आते स्मॉल कैप इंडेक्स 60% डाउन हो गया, फिर 2021 तक 4 गुना हो गया, उसके बाद 2021 2022 में पैसा आया, फिर 2022-23 में स्मॉल कैप में पिटाई। मार्च 2023 आते आते स्मॉल कैप इंडेक्स का लेवल वही था जो जनवरी 2018 में था। फिर मार्च 2023 से फिर चला, तो 2025 के स्टार्टिंग में फिर 20% डाउन। अब चलो थोड़ा संभला है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो पैसा तो 2020, 2018, 2021 और 2024 में पैसा लगता है लोगों का, और 2020, 2022 और 2025 के शुरुआत में लोग नाराज होते हैं। तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, अल्फा बनना चाहिए, हम उसमें बहुत मेहनत करते हैं, सब सही है। लेकिन अगर आप एक डेडिकेटेड ओपन एंडेड स्मॉल कैप फंड, जहाँ पे रोज पैसा आता है, रोज पैसा जाता है, तो उसमें वॉलेटिलिटी इतनी हाई है कि गलत टाइम पे पैसा आना और गलत टाइम पे पैसा जाना इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी। एंड लास्टली ये भी है कि भाई, जब एक बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, देयर इज अ बुक कॉल्ड हेज हॉगिंग। इसमें ये मॉर्गन स्टैनली के कुछ एक्स एम्प्लॉयज ने लिखी थी ये किताब। उसमें एक मिस्टर धर, DHAR, इनका फर्स्ट नेम आई एम रियली सॉरी मैं भूल गया, इन्होंने लिखा था स्टेटमेंट, द बेस्ट टाइम टू रेज मनी इज नॉट द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, एंड द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज नॉट द बेस्ट टाइम टू रेज मनी। तो ये तो हमारे इंडस्ट्री में तो हम लोगों को, सब लोगों को ये ध्यान रखना ही चाहिए, ये तो हमारा पहला धर्म है। We should always remember that when everybody is very, very happy to give you lots of money, you should be careful. And when nobody
wants to give you money, that time you should be doing your double best कि भाई ये सही मौका है, 2 पैसा, राइट? इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि भाई S&P 500 का फंड कब आया था? जब कोई किसी को पैसा नहीं देना था, लेकिन भाई इट मेड सेंस। तो ऐसे अभी आप देखिए हम लोग ने व्हाइट ओक का शुरुआत कब किया है? 2022 में, जुलाई 2022 में। तो भाई जून जुलाई 2022 में तो निफ्टी 15,200 पे था। तो हमने थोड़ी बोला कि नहीं नहीं यार अभी तो मुश्किल समय है, अब 1 साल बाद करेंगे, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जब मुश्किल समय है तब तो आपको बाहर जाके लोगों से मांगना चाहिए पैसा कि भाई दो, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप देखिए जैसे पिछले साल फंड्स कौन से लॉन्च हो रहे थे? एनर्जी, PSU, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस। तो हमने तो फार्मा फंड लॉन्च किया ना लास्ट ईयर, राइट? सो यू हैव टू बी, सी इन आवर बिजनेस एज ए प्रोफेशनल, एज ए स्टॉक मार्केट पर्सन, एज ए इन्वेस्टर, थोड़ा मतलब हमेशा नहीं, थोड़ा विपरीत बुद्धि या थोड़ा कॉन्ट्रा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। होने के लिए होना ऐसा नहीं है, इट्स नॉट फैशनेबल टू बी कॉन्ट्रा, बट थोड़ा वो एक माइंड में रखना जरूरी है। When things become very easy ना, one has to be careful. जैसे मैं कभी कभी ऐसे मतलब हम बोलते हैं ना, वो मूवी में था ना कि कभी कभी लगता है अपुनिज भगवान है, तो ऐसा जब ख्याल आया ना तभी थोड़ा पीछे हट जाओ। What's your view right now on the small cap index? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग या मिक्स्ड है, क्योंकि मेरे को पता है कि लंबे अरसे में तो देखिए क्या है कुशल, स्मॉल कैप इन इंडिया, एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हमारा $2,800 पर कैपिटा इनकम है, तो ये आने वाले थोड़े समय में मिडिल क्लास कंट्री बन जाएंगे, $6,000-7,000 हो जाएगा। तो जब एक कंट्री का पर कैपिटा बढ़ता है, राइट, तो उससे सीधा सीधा असर कैपिटल मार्केट्स, कंजम्पशन, हेल्थ केयर, अफोर्डेबिलिटी, ये सब चीज़ों पे होता है ना। तो ये सब सेक्टर तो दे आर लोडेड विथ, और अगर हम सोचते हैं कि भाई हमको इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोग्रेस होगी, ऐसा अगर हमको लगता है तो ये सब कुछ स्मॉल कैप में है। और हम लोग जब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पोर्टफोलियो में वो स्टॉक नंबर 251 to 500 रैंक नहीं, रैंक नंबर 700, 800, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 4,000 करोड़, ये पूरा ही एक्सपोजर, राइट? तो अगर आप लंबे अरसे के लिए मुझे बोले अल्फा कहाँ से जनरेट करेंगे, नए सेक्टर्स में पार्टिसिपेट कैसे करेंगे, इधर आप देखो सेव भुजिया पोटैटो वेफर वाले का भी, जूता चप्पल रेस्टोरेंट, सब नया नया लिस्टिंग, डायग्नोस्टिक्स, हॉस्पिटल्स, वो सब 600 IPO आ गए 5 साल में, पूरे सेक्टर लिस्ट हो गए 5 साल में। जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, अपैरल्स, फुटवेयर, ईटिंग आउट, सेवरीज, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ये तो था ही नहीं लिस्टेड, ये तो सब एंट्री हुआ है स्मॉल कैप से, मिड कैप से। तो वेरी बुलिश। केवल ये है कि अभी का जो समय है जहां पे रिसेंट पास में अच्छा रिटर्न बना है, और आप देखो 1 साल से ना मार्केट इज गोइंग नोवेयर। जैसे थोड़े दिन पहले मैंने देखा हमारा जो विक्स है, वॉलेटिलिटी इंडेक्स इज एट इट्स एब्सोल्यूट लो टिल रिसेंटली। तो मार्केट इज थोड़ा डेलिकेटली पॉइज्ड है। तो शॉर्ट टर्म में मेरे को नहीं पता है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, वी कैन बी 10-15% डाउन ऑल्सो, आई डोंट नो। शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, बट अगर आप मेरे को लॉन्गर टर्म में, तो कोई डाउट ही नहीं है, दैट्स द प्लेस वेयर वी विल गेट our best ideas and highest alpha will come from there. And similar view on the Nifty or Sensex index? So again, आने वाले 3-6 महीने का मेरे को नहीं पता है। आई थिंक इट इज वेरी डेलिकेट, वेरी डेलिकेटली पॉइज्ड। क्यों डेलिकेट, मैं आपको क्लैरिफाई करता हूँ, क्योंकि डोमेस्टिक माहौल जो है ना, वो तो स्टेबल है, आई मीन ऑन अ इम्प्रूवमेंट ट्रेंड है एक्चुअली। अगर आप देखें 1 साल पहले हम GDP ग्रोथ, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, RBI पॉलिसी, ये सब पे बहुत चिंता थी। कंपेयर टू दैट आज हम समझो जुलाई अगस्त 25 में अगर देखें तो काफ़ी चेंज हो गया है। RBI पॉलिसी, गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, खासकर स्मॉल एंड मिड कैप में, GDP ग्रोथ, तो डोमेस्टिक कंडीशंस इंप्रूव हुई है। लेकिन बाहर का माहौल ऐसा है जो अपसाइड को कैप रखता है ना। बाहर का माहौल में आप देखिए जियोपॉलिटिक्स है, ट्रम्प साहब के जो टैरिफ्स का पूरा कंट्रोवर्सी है या अनसर्टेनिटी है, और जियोपॉलिटिक्स है, राइट? तो पहले जैसा स्टेबल वर्ल्ड है नहीं अभी, और वो जब तक इसका इमीडिएटली तो कोई निकाल आएगा नहीं, लेकिन जब तक ये अनसर्टेनिटी है तो डोमेस्टिक कंडीशंस मार्केट को ज़्यादा मतलब गिरने नहीं देंगी। समझो 10-15% गिर गया तो मार्केट सस्ता लगने लगेगा, तो डोमेस्टिक कंडीशंस मार्केट को गिरने नहीं देंगी। और बाहर का कंडीशंस ऐसा है जो अपसाइड कैप किया है, तो कुछ क्लैरिटी आना चाहिए। इसलिए मेरे को लगता है आने वाले 6 महीने तक तो कुछ चेंज नहीं होगा, हम ऐसे ही रेंज में जैसे हैं, 1000 पॉइंट ऊपर नीचे उसी तरह चल रहा है।
एंड ऐसे कोई स्पेसिफिक सेक्टर्स है जो आप काफी बुलिश हो कि ये 2-3 सेक्टर्स है जो अच्छे चल सकते हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू तो इयर्स? डेफिनेटली विथ फुल रिस्पेक्ट टू योर क्वेश्चन, ऑब्वियसली आई विल आंसर योर क्वेश्चन, बट पहले मेरे को एक क्लेरिफाई ये करना पड़ेगा कि भाई वाइटोक जो कंपनी में मैं काम करता हूँ, वाइटोक एक्चुअली सेक्टोरल इन्वेस्टर है नहीं। क्योंकि हम लोगों का ऐसा मानना है कि भाई हमारा मेन जॉब ये है कि समझो एक किसी डाइवर्सिफाइड फंड में हमारा इंडेक्स है BSE 500, तो हमारा कर्तव्य ये है कि हमको BSE 500 को बीट करना है। और BSE 500 इंडेक्स जो है ना, इसमें टेक्निकली अगर आप देखें तो PSU कंपनी, प्राइवेट कंपनी, डिफेंसिव कंपनी, सिक्लिकल कंपनी, लार्ज मिड स्मॉल, डोमेस्टिक वर्सेस एक्सपोर्ट, हर तरीके की कंपनी है। तो हम कभी कोई एक्सट्रीम कॉल्स नहीं लेते हैं। जैसे पहले भी मैंने बताया कि हम हाईएस्ट रिटर्न, हाईएस्ट अल्फा जनरेट करने की ट्राई नहीं कर रहे, उतना रिस्क नहीं लेना है हमको। हमको इंडेक्स को कंसिस्टेंटली बीट करना है। तो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन हम लोग जिस तरीके से करते हैं, तो उससे ये जान पड़ेगा आपको कि हम लोग सेक्टोरल इन्वेस्टर है नहीं, एक्चुअली वी आर इन्वेस्टेड अक्रॉस सेक्टर्स। किसी को लगे ना कि ये खराब सेक्टर है, कुछ नहीं होने वाला है, तो भी उस सेक्टर में आपको एक दो अच्छे आइडियाज मिलेंगे जिससे कि आप आउट परफॉर्म कर। जैसे आप देखो पिछले 1.5-2 साल से लोग बोल रहे हैं, मे बी 3 साल से लोग बोल रहे हैं कि आईटी में कुछ नहीं होएगा, लेकिन आप सिलेक्टेडली देखो स्मॉल कैप, मिड कैप, अगर आप ऐसी आईटी कंपनीज खरीदते पिछले साल जो BFSI को सर्विस करते हैं, तो दे हैव आउट परफॉर्म। द लार्ज आईटी हैज अंडर परफॉर्म। TCS जैसी कंपनी का दाम 30% डाउन हो गया शायद, बट स्मॉल कैप आईटी कंपनीज दे आउट परफॉर्म। तो स्टॉक पिकिंग पे डिपेंड करता है, हम लोग सेक्टोरल इन्वेस्टर है नहीं। बट नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन, एट द सेम टाइम एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट आई मे हैव सम व्यूज। तो देखिए, जैसे हमारी इंडस्ट्री है कैपिटल मार्केट, राइट? कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री जो है, आई थिंक दैट जब लोग BFSI या बैंकिंग की बात करते हैं ना, तो लोग बैंक और NBFC पे आके अटक जाते हैं। लेकिन हम लोग की जो कैपिटल मार्केट इंडस्ट्री, दैट इटसेल्फ हैज बिकम वेरी बिग नाउ। क्योंकि इसमें आप देखो एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ब्रोकिंग, फिर एंसिलरी सर्विसेज है जैसे RTA, डिपॉजिटरी, फिर मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे एक्सचेंजेस हैं, करेक्ट? फिर उसके साथ जुड़े हुए डिजिटल कंपनीज हैं, कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। सो द होल कैपिटल मार्केट स्पेस, इट इज बाउंड फॉर सिग्निफिकेंट ग्रोथ। दूसरा क्या है, कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स को लेकर के एक भारी भारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब भी मार्केट गिरता है ना, तो सारे कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स जो है ना, वो सारे गिरते हैं। लेकिन मार्केट में ऐसा कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भाई हमारा जैसे एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड कंपनीज या वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, लोगों को लगता है कि जब मार्केट गिरता है तो इनका बिजनेस भी गिरेगा, इनके दाम भी गिरते हैं। लेकिन जितना लोगों को प्रतीत होता है उतना सिक्लिकल एसेट मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट इज नॉट ब्रोकिंग। वी आर नॉट एज सिक्लिकल एज, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि एसेट मैनेजमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, उसमें लोग कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? एंड वी हैव नथिंग टू डू विद ब्रोकिंग वॉल्यूम्स पर से, राइट? बिकॉज वी आर इन अ फी बेस्ड बिजनेस। सो ये पूरी जो इंडस्ट्री, इसको समझना अभी बाकी है, और आई थिंक इसमें काफी ग्रोथ पोटेंशियल है आगे। सेकेंड थिंग अगर आप देखेंगे तो कंजम्पशन बट डिस्क्रेशनरी, हाई एंड एक्सपेंसिव, middle class and above, those kind of consumption ideas like travel, tourism, hotels, eating out, fashion, luxury, retailing. Then if you see मैन्युफैक्चरिंग, लाइक सी पिछले 2-3 साल में जो चीज बहुत चल गई, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आगे स्कोप है और कंटिन्यूसली नए आइडियाज आते रहते हैं, दैट इज एक्चुअली इफ यू आस्क मी मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज इसमें कंसिस्टेंटली न्यू आइडियाज कीप कमिंग। सो या, दीज आर टॉप 3-4 थिंग्स। yeah, and of course we invest across, yeah. एंड ऐसे कभी हुआ है लाइक आपके करियर में, इफ यू कैन गिव एन एग्जांपल कि यू टुक अ रॉन्ग बेट, या तो आपने इन्वेस्ट किया है तो आपने कुछ तो भी मिस्टेक की, इन द सेंस कि आपने इन्वेस्ट किया और आपको बाद में लगा कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था, और मे बी इट डिडंट प्ले आउट द वे यू वांटेड इट टू? या सो जैसे मैंने पहले भी बताया कि डायरेक्ट इक्विटी, पर्सनली इन माय करियर एंड इन माय जॉब एंड इन द मार्केट, जो मेरा लर्निंग ये है कि डायरेक्ट इक्विटी में क्या होता है कुशल, एज ए प्रोफेशनल मैंने 2-3 चीजें देखी है। फर्स्ट, द डिस्ट्रैक्शन। सो व्हेन आई वाज नॉट इन, सी अभी तो आई हैव बीन इन लास्ट 15 years, मे बी आई हैव बीन इन अ सीनियर पोजीशन, तो बिकॉज ऑफ कंप्लायंस मैं डायरेक्ट इक्विटी करता नहीं हूँ। बट जब भी मैंने देखा है कि भाई डायरेक्ट इक्विटी में पहले भी कभी मेरा पोर्टफोलियो था, तो मैंने 2 चीज देखी है कि अल्टीमेटली ना डायरेक्ट इक्विटी में लोग एनेक्डोट्स में डील करते हैं। ये देखो मैंने ये स्टॉक ले लिया, इतना हो गया। लेकिन क्या होता है यार, अगर आप 20 स्टॉक अगर आपने लिए हैं, आप पूरे पोर्टफोलियो का IRR या CAGR निकालोगे और उस पोर्टफोलियो का CAGR को बेंचमार्क से कंपेयर करोगे ना, बहुत ही कम लोग हैं जो वाकई में
इंडेक्स को बीट करते हैं। तो मैंने देखा है कि जब भी मैंने कभी भी अलाउड था मुझे, जब मैंने डायरेक्ट इक्विटी किया है, तो मैंने खुद का बायस ये ऑब्जर्व किया है कि हम 2-4 सक्सेस स्टोरीज को लेकर के बहुत ही एनेक्डोटली खुश हो जाते हैं कि वाह देखो मैंने ये स्टॉक लिया इतना हो गया। बट कुल मिला के जब पूरा पोर्टफोलियो देखते हो ना, तो मतलब इंडेक्स को बीट करना जितना लोगों को लगता है उतना आसान नहीं है। तो मेरे लिए डायरेक्ट इक्विटी हैज एक्चुअली नॉट वर्कड, and I suspect that for large part of people, they are not seeing their portfolio level IRR, and they are not comparing it with the index. That is the problem. देखिए म्यूचुअल फंड्स का क्या है कि भाई म्यूचुअल फंड्स का ना चर्चा बहुत होती है क्योंकि डेटा बहुत पब्लिक है यार। देखो हमारा रोज का एनएवी छपता है, हमारा रोज का ट्रेड डेटा अपलोड करना पड़ता है हम लोग को, हम लोगों के पोर्टफोलियोज भी पब्लिक है। तो जो चीज अवेलेबल है ना, वो देखो ये फंड मैनेजर ने ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, इसका परफॉर्मेंस ऐसा हो गया, इसने देखो ये आईपीओ में अलॉटमेंट लिया, फिर इसने वहां पे एंकर इन्वेस्टिंग किया। तो हम लोगों का ना डेटा पब्लिक है, तो जो डेटा पब्लिक है जो अवेलेबल है उस पर तो आप फटे तक चर्चा कर सकते हो। लेकिन आपका पर्सनल पोर्टफोलियो या मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो अगर होता तो वो तो पब्लिक नहीं होता। तो मैं आके चाहे कुछ भी बोलूँ ना, मतलब मेरा थोड़ी कोई आईआरआर मेरे से पूछ रहा है, थोड़ी मेरे को पूछ रहा है तुमने इंडेक्स बीट किया कि नहीं, वो प्रॉब्लम है। सो आई हैव लर्नड दैट transparency is very good, but transparency sometimes distract people, and transparency causes the biggest availability bias. जिसका डेटा अवेलेबल है उसका चर्चा होता है, जिसका डेटा अवेलेबल नहीं है ना उसको कोई पूछ भी नहीं रहा है। दैट इज द इश्यू विथ डायरेक्ट इक्विटी वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। कभी ऐसे हुआ है लाइक कि कोई एक सेक्टर रैली हुआ था या तो कोई एक थीम रैली हुआ था, बट यू सेड कि आप तो सेक्टर वाइज तो नहीं करते हो इन्वेस्ट, बट कभी मिस आउट हुआ है कोई थीम, या तो आप मतलब रैली हो गया बट आपने मिस कर दी अपॉर्चुनिटी? पर्सनली सो एज ए पर्सन हु ट्रैक्स द मार्केट ना, एज अ पर्सन हु ट्रैक्स द मार्केट, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया विद एग्जांपल्स कि एंड वेयर देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट। जैसे मैंने आपको बताया 2020 आई वाज वेरी क्लियर रियल एस्टेट विल डू वेल फॉर एग्जांपल, राइट? तो दोज आर सम पॉजिटिव एग्जांपल्स। लाइक आई हैव बीन, आप मेरा पूरा का पूरा देख लो, कहीं भी मैंने बात किया तो मैं 4 साल से बोल रहा हूँ कैपिटल मार्केट कंपनीज विल डू वेल। देन फॉर एग्जाम्पल वेन एवर समबडी हैज आस्क्ड मी, जैसे मेरे फेवरेट है, मेरे को जब भी कोई बोलता है ना, आई फाइंड इट वेरी फनी। हमारा इकलौता ऐसा इंडस्ट्री है जो अपने कस्टमर्स को डिसरिगार्ड करता है या अंडर एस्टिमेट करता है। अब देखो कितने लोग आके बोलते हैं कि वो इतने सारे नए इन्वेस्टर ना 2018-2020 के बाद आए हैं, मार्केट गिरेगा तो सब डर जाएंगे। आई हैव कंसिस्टेंटली बीन सेइंग दैट these people are different, they are not going to get scared, right? So that's why I've been bullish on capital market. But on your question, जैसे 2017 के बाद से chemicals did very well, तो I would say that I was not glued on. मतलब see, frankly, I am not a fund manager myself, but I do track markets and I observe all these things. So you're right in asking this. जैसे chemicals, I did not know it would be like when I joined White Oak in 2020. White Oak was already big portfolio positions were in chemicals. White Oak was a big investor in chemicals. But originally from 2017-18 when it started playing out, probably I was not very aware of it. So that could be something. But generally speaking, yeah, that is one example. There will be over a period of time, definitely there will be examples, but yeah. Got it. And आप काफी सारे analogies वगैरह आप use करते when you explain about market. I like the Mumbai train detour one that you say कि आप गोरेगांव से बोरीवली जाओगे because crowd कम रहेगा, and then बोरीवली से वो चर्च गेट फास्ट ट्रेन में जाओगे. Similarly in equities, आप एक बार मतलब बैठ जाओ, basically that is more important rather than कि कहाँ पे बैठ रहे हो and all of that. वो काफी सही होती है analogy. See, actually क्या होता है कि what I've seen is that different people will understand different, अलग अलग भाषा, अलग अलग फ्रेमवर्क, अलग अलग फिनोमिनन, सबके अपने अपने अलग अलग ऑब्जर्वेशंस है ना। अगर आप कुछ चीज देखते हैं, अगर एक फैन रोटेट कर रहा है तो फैन रोटेट करता हुआ देख के आपको क्या ख्याल आ रहा है, मुझे क्या ख्याल आ रहा है, दे में बी कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। सेकेंड थिंग, सो एनेक्डोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ समझाने के लिए। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट्स का जैसे एक पूरी किताब है, जैसे देयर इज अ बुक कॉल्ड इन्वेस्टिंग द लास्ट लिबरल आर्ट। ओके, ये पूरी बुक किस पे है पता है आपको? इट ड्रॉज पैरेलल्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, थियरी ऑफ एवोल्यूशन,
फिजिक्स, ये सबके पैरेलल्स ड्रॉ करती है विद फाइनेंशियल मार्केट्स। जैसे अगर आप देखो साइकोलॉजी, राइट, साइकोलॉजी जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई मार्केट प्रेडिक्टेबल शायद नहीं है, लेकिन किसी भी मार्केट सिनेरियो में लोग कैसे बिहेव करते हैं या बिहेव करेंगे ये जरूर आप प्रेडिक्टेबल भी है, इससे आपको हिंट्स भी बहुत मिलते हैं। So market is not predictable, but in any market scenario, how people behave or conduct themselves, that gives you a lot of insights. You can use that to predict the market. जैसे पता है आपको, अभी थोड़े समय पहले मैंने बोला कि भाई जैसे हम इनकम फंड्स की बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि जब ब्याज दर गिरते हैं तो बॉन्ड्स के दाम बढ़ते हैं। तो उसमें और एक डिटेलिंग ये है कि भाई जब ब्याज दर गिरते हैं तो बॉन्ड्स के दाम बढ़ते हैं, लेकिन जितनी लंबी अवधि के बॉन्ड्स हैं उतना उसके ज़्यादा दाम बढ़ते हैं। वो फिजिक्स है। जैसे अगर आप देखिए कहीं पे एक दरवाज़ा है, तो दरवाजे के एक कोने में तो हिंजेस होते हैं और दरवाजे के दूसरे कोने में हैंडल होता है ना। तो हैंडल हमेशा दूसरे कोने में क्यों होता है, हैंडल सेंटर में क्यों नहीं होता है? क्योंकि जितना दूर आप हिंजेस से हैंडल को जितना दूर आप रखोगे, उतना आसानी से आप दरवाजा खोल पाओगे, उतना कम फोर्स लगेगा आपको दरवाजा खोलने में। तो सेम वे बॉन्ड की जीरो मैच्योरिटी से लेके 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, जितनी लंबी अवधि का बॉन्ड है, ब्याज दर गिरने पे उतना ज्यादा वो उछलेगा, ब्याज दर बढ़ने पे उतना ज्यादा वो गिरेगा। तो बॉन्ड के जो पोर्टफोलियोज हैं उसमें फिजिक्स का ये प्रिंसिपल ऑफ लीवरेज है कि भाई अगर आपको लगता है ब्याज दर बढ़ने वाले हैं तो आपके पोर्टफोलियो का मैच्योरिटी बहुत कम होना चाहिए, और अगर आपको लगता है ब्याज दर घटने वाले हैं तो पोर्टफोलियो का मैच्योरिटी लंबा होना चाहिए। अगर आप बोरोइंग कर रहे हैं, आपको पता है कि ब्याज दर घटेंगे तो आप फ्लोटिंग रेट करेंगे या लंबी अवधि का बोरोइंग करेंगे। आपको पता है कि ब्याज दर बढ़ने वाले हैं तो आप फिक्स्ड रेट करेंगे और छोटी अवधि का बोरोइंग करेंगे, राइट। तो ये अगर आपको मैथ्स नहीं समझ में आता है लेकिन फिजिक्स तो समझ में आता है ना, तो अलग अलग चीजों से लोग समझते हैं। जैसे लोग कंपनियों का एनालिसिस करते हैं कि भाई कंपनी कौन सी लंबी है, लंबे रेस में विच कंपनीज will survive for 50 years or 100 years. The companies which have a history of being adaptive, ये theory of evolution है ना कि survival of the fittest. तो survive कौन करता है? जो adapt करता है अपने आप को। तो आप अगर कौन सी कंपनी लंबी अवधि तक बिजनेस में रहेगी, ये अगर आपको नहीं समझ में आता तो कम से कम theory of evolution ये बताती है कि adaptiveness important है। तो वो फ्रेमवर्क तो आप लगा सकते हैं ना। So to understand market, you can understand different phenomena and then you can apply that to the market. Market को समझने के लिए केवल market समझना काफी नहीं है actually. You can understand it better if you understand many other phenomena. Like physics, maths, behavior, psychology, theory of evolution, all of those things. Chemistry is very important. जैसे आप asset allocation की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको पूछूं कि भाई अगर आपका पोर्टफोलियो 100% डेट है क्योंकि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, फिर मैं आपको लेने कुशल आप भले कितना भी कंजर्वेटिव हो ना, आपको 10-15% इक्विटी डालना चाहिए। वो लोग क्या बकवास कर रहा है, अगर मैं 100% डेट में 10-15% इक्विटी डालूंगा तो रिटर्न का तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कभी न कभी वो गिरेगा, मेरा वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगा। दैट्स अ नॉर्मल थिंकिंग। बट आप लॉजिकली सोचो, हमेशा लोग क्या करते हैं कि 100% डेट में 15%, तो उसको 85% डेट कर दिया और 15% इक्विटी डाला। तो लोग इक्विटी को इक्विटी की नजर से देखते हैं कि ये इक्विटी गिरेगा तो मेरा क्या होएगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि इक्विटी अपने आप में कैसे बिहेव करता है इज डिफरेंट कंपेयर टू 85% डेट की कंपनी में 15% इक्विटी कैसे बिहेव करता है। दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। इफ आई मीट यू इन द इवनिंग if you and me meet in the evening, you will be Kushal. If you meet me along with your wife or girlfriend, you will not be the same Kushal. You will be different. Correct? So that is chemistry. That is not maths. जैसे asset allocation हम करते हैं कि भाई इक्विटी, गोल्ड और डेट इसको मिक्स करने से, तो वो इक्विटी, गोल्ड और डेट जैसा अपने आप में बिहेव करता है वैसा नहीं बिहेव करता है। वो जब तीनों का मिश्रण होता है तो उसका पूरा मैथमेटिक्स चेंज हो जाता है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक केमिस्ट्री। मैथ्स में 1+1 2 होता है, केमिस्ट्री में 1+1 आग भी लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो लोगों को लगता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलाने से पानी बनता है। नो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन सकता है ना, जल जाओगे आप। सो
asset allocation is actually more like chemistry and less like maths. It depends what you mix in which proportion, और वो अलग चीज बनती है, राइट? सो ये Yeah. सब अलग अलग लॉजिक या अलग अलग मेटाफर्स या एनेक्डोट्स जो भी होता है ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू Yeah. थिंक. वाओ, सो इंटरेस्टिंग. बहुत बहुत ही मजा आया, मतलब सुपर इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत सीखने मिला. वन लास्ट क्वेश्चन आई आस्क ऑल माय गेस्ट्स, इट्स अ ट्रिकी वन. इफ यू आर इन द शूज ऑफ कुशल लोढ़ा एंड इफ यू आर इंटरव्यूइंग मिस्टर आशीष सोमैया, व्हाट इज वन क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क हिम? Oh my God, I think your research was mind blowing. Thank you so much. Means a You lot. asked me very, very pointed questions, but what did you miss asking me? You could have asked me कि भाई अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं होते तो आप क्या करते, क्योंकि मैंने तो खुद ही बोला कि भाई इट वाज अ सीरीज ऑफ एक्सीडेंट्स, Yeah, कोई that's a good परफेक्ट one. बैक स्टोरी तो नहीं है. So क्या क्या करते हैं आप अगर So स्टॉक I मार्केट्स में would नहीं have होते? been I would have been a teacher, I think, teacher or Yeah. journalist. You can be a phenomenal teacher. I'm not even kidding. मतलब आप बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो. Yeah, so I could have been a teacher or I could have been a journalist. The way you explain with anecdotes and trust me, I mean, it's so easy to understand, and No, the way thank you you, explain thank with you, examples, thank you you. can be a fabulous teacher. I'm not even kidding. Yeah. nahin, thank you, thanks for that. Yeah, but yeah, I think very detailed, very exhaustive. Thank you very Yeah, much. no, thank you so much for doing this. I hope you enjoyed your 2 hours of conversation, and I hope I could do justice to your time. My pleasure. Thank you, Kushal. All the best. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट वी कैन गिव यू मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट इन द शॉर्टेस्ट अमाउंट ऑफ टाइम. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए. हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.